कनेक्शन जो हमारा जो होगा ना, मतलब जो भी हम करेंगे वो। ओके फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड. So I will put some, I will take RSI. Okay, RSI. Let us add volume also. Okay, so friends, I have added two things, volume and RSI. Okay, so you can see here friends, this Greaves cotton today it opened gap up. It's a 15 minutes candle, 15 minutes chart. So you can see here from the yesterday closing, it was the closing of yesterday somewhere here in this range. Here maybe this price, yeah, 153 somewhere. Okay, and today it opened gap up and there is a small doji. आप यहाँ पे डोजी देख सकते हो दोस्तों. ये देखिए, ये डोजी कैंडल से खुला, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुई है इसकी, ठीक है, और अगला कैंडल भी डोजी है, ठीक है. तो मतलब ये अपने रेंज में ही कुछ रहा है, ठीक है. अजीब सा चार्ट लग रहा है, 5 मिनट में देखता हूँ. तो छोटा कर लेंगे हम. ये क्या हो गया? हम इसको 5 मिनट्स में देख लेते हैं दोस्तों. यस, 5 मिनट्स में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है. कैंडल बहुत छोटे छोटे बने हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कैंडल है. कल मतलब इसमें थोड़ा पॉसिबल है कि ये एक रेंज में रहा है. इसने दिन भर देखो सुबह सुबह जो इसमें मूवमेंट आई थी, उसके बाद एक किस्म का ये रेंज में रहा है, ठीक है. तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि कल ये थोड़ा सा मूवमेंट दे सकता है, लेकिन हाँ, इस 15 मिनट की रेंज के बाद ऊपर भी गया. चलिए, ये हमारा ठीक है. ओके, तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, चैनल को रिमूव कर देंगे. चैनल को 1 मिनट कैसे हटेगा ये. ओके, यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको. ओके, सो फ्रेंड्स, मैं इसका सबसे पहले मैंने आपको कल जैसे बताया था कि हम इसका मंथली चार्ट हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू मंथली चार्ट फ्रेंड्स. वी विल सी दिस स्टॉक इन मंथली टाइम फ्रेम, मंथली चार्ट, हाउ इट लुक्स, and I will use RSI also. Okay, right. So you could see here friends, this is monthly chart of Greaves Cotton Limited. Okay, so it was the first month where it was listed somewhere around 14-15 somewhere. Okay, yes, 14. Opening was 14, high 16.30, low was 13.10. Okay, and see here friends, its journey, it started its journey from 14 and given a very strong upside movement, made a 99, 89, 90 somewhere. Yeah, made a high of 92, 93 somewhere. Lifetime high was 93.20 actually. Yes, till this time, I am telling for this time, from the initial listing time. So this stock has done very well in the initial listing time. Then here some profit booking came. Okay, and stock has gone down to this level. So friends, you could see here, it once it listed from 14 level, it moved to 93 level, then it remained in this range for quite a long time, maybe for more than 1 year. It remained in this range if we count each candle, so there may be more than 12 candles. Okay, and each candle represents 1 month here, because I am looking at monthly chart. You can write, you can see here 1 month is written. So let me count the candle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 1, 2, 3, 4. Oh my god, for 2 years the stock remained in this range of 58 to, we can say, somewhere 80, 85. Okay, right friends. So for 2 years the stock remained in this range, and then after 2 years, for next 6 months, 6 to 8 months, I think, if we include this candle also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So for next 1 year, okay, after 2 years period of this
small range, it broke that range. In lower side you could see here the range was broken. Once this range was broken, it has moved down for continuously for one period of time. Within 1 year's time, it moved back to 10 level. Okay, from a range of 60 to 80, it moved back to 10 level. Means this time it has broken its initial listing price also. 14 level is also broken. It gone down to 10 level. Okay, so this level acted as a strong support from the stock. So actually 14 level was somewhere we could say that this 14 level is actually the support level for the stock. So I will take a line here, because support is not a single point, friends. Always remember that support is not a single point, it's a range. Okay, so stocks may go little above and below also. Yes, this is our so I will make some lines so that later we can study them easily, shift them easily. Okay friends, so we will continue with the same concept of support resistance, but I will tell you something advanced today. Okay, so I have put 3-4 lines and they are enough. Okay friends, so you could see here that this level of 14 level was the support level. Okay, so stock once moved from 14 level, its initial listing price, it gone up to 93 level, remained in this range for 60 to 80, 85, 90 level. It remained in this range continuously for 2 years. Okay, and after 2 years, this level was a support level, friends. Means there was a major support level for this level, because stock remained in this range for continuously for 2 years. About 58 to 85 level, somewhere 80, 85 level. Okay, stock remained in this range. Okay, and see, in this month it has broken that range of that support. This support line was broken. Look at this line of 58 somewhere. Once that was broken, yes, actually we should place it here. Yes, here, somewhere here, 54. Yes, so once that level was broken, friends, you could see here the stock has gone down. Okay, once this support was broken, see, the stock has fallen badly. Okay, it has straight moved down to this level of 10 somewhere, 10, 11 somewhere. Okay friends, and see friends, what is the trend, what is the downward trend, how it has gone down, what is the size of the candle. Look at the size of the candles also. This is also one important indication that once stocks are rising or they're falling, look at the size of the candles. Now the candle size are decreasing, the candles are becoming smaller. Okay, see, the ending 4 candles are very very small. दोस्तों आपको ये बात समझ आ रही है कि चौथे जो लास्ट के जो 4 कैंडल हैं कितने छोटे हैं. तो ये इससे हमें एक बात का और पता चल रहा है कि भाई अब इसका डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है. ठीक है, क्योंकि देखो मंथली चार्ट देख रहे हैं हम, तो मंथली चार्ट पे इतने छोटे छोटे कैंडल्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे जो फॉल आ रहा था स्टॉक में, अब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने वाला है. और ये लेवल 14 लेवल का लेवल है, वहीं पर इसने स्टॉक ने दोबारा से सपोर्ट लिए, जहाँ से इसकी इनिशियल लिस्टिंग हुई थी, और वहीं से वो स्टॉक 93 छुआ था. उसी लेवल पे आके ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हुआ था और ये 93 लेवल पे छुआ था इसने. ओके, एक बार यहाँ पे इसने कितना हाई मारा है, हाई छुआ है 94 भी छुआ है एक बार. ओके, यहाँ पे कितना हाई करा है 93.20 और यहाँ पे 94 करके, और स्टॉक में बहुत भारी जो है इसका फॉल हुआ है, बहुत बैडली स्टॉक फॉल हुआ है. राइट, और जाके 10 लेवल के 10-11 के आसपास ने सपोर्ट लिया, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, और स्टॉक उसके बाद देखिए उसके बाद इसका अप ट्रेंड कैसे शुरू हुआ और कैसे बड़ी कैंडल्स बनी, कैसे कैंडल्स बनते जा रहे, और कैंडल देखिए बड़ी होती जा रही है. सो जब कैंडल्स बड़ी होती जा रही मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है. ये देखिए जैसे यहाँ पे छोटे कैंडल, बड़े कैंडल थे, फिर थोड़ा सा हल्का सा इसको हम कह सकते हैं, एक हल्का सा एक हेल्दी करेक्शन हम बोलेंगे, फिर से ये स्टॉक, ये देखिए कितना बड़ा कैंडल यहाँ पे बना, देयर इज अ बिग कैंडल. सो इट इज सजेस्टिंग दैट देयर इज स्टिल वी कैन से स्कोप फॉर द स्टॉक टू गो हायर. Again there is a little consolidation. Okay, its stock remained here in this range for 3 months. See the next month the move is bigger. Okay,
Again for 3 months it remained in consolidation and again given a very big movement. Okay, see friends, this time the level, this level of 90, 93, 85, 93 was not, could not stop this stock. It has broken that previous high. That is means the resistance was broken. Stock has broken that resistance level and gone up to fresh high, made a fresh high of 103, and there was a split also. That time the stock split into 5. One stock was split into 5 parts, into 5 equal parts. Okay, right? So somewhere this stock, okay. So somewhere we could say here that a stock of 110, no, it's not 110, maybe 100 stock. Okay, so it is divided into 5. Okay, so it has become 20 rupees again, we could say, because its price was broken. It's a stock was split. That's not split actually. Yeah, split is there. Okay friends, so see, after this stock was split, it has gone down. Look at the trend, downward trend is now. But see here, it took support of again that level of 53, 55, 65. That the level I told you before. Let me just make it smaller. I am telling you this line friends, this level, sorry, it became very small actually. Okay friends, so you could see here this level of 55, 50, 54, 55 somewhere, this level again acted as a strong support here after this fall. The stock has fallen for some around 2 years, I think so. Yeah, it is in the year 2010, in November 2010, and here it came in the year, okay, more than 4 years friends, 2014, 3 years we can say, because it's in November. Okay, so for about 3 years stock remained in downtrend. So friends, we have to understand this thing. We have to understand this thing, that once a stock is in downtrend or in uptrend, okay, so we should follow the trend and accordingly trade in that stock. So see, for a period of 3 years, even more than 3 years, the stock remained in downtrend. And look at this level. From this level of 10, it was started in March 2009. It moved up to this level of up in 2010, November 2010. So it started from 9 to 10 for within 1 year friends. Within 1 year the stock has given a very strong up move from 10 rupees up to 100 rupees friends. It's a huge, it has given multi-bagger returns that time. So stock has turned multi-bagger, and once that, actually what happened friends, once stock gives such big returns, so what happened, all the investors, those who have bought in this level, actually within 1 year it has given multi-fold returns. It has given more than 10 times returns, I think. Yeah, more than 10 times, because simply 100 divided by 10 is 10 times. Okay, it has given 10-fold returns, called a multi-bagger. Multi-bagger stock is the one which gives a minimum return for 5 to 10, somewhere 5 to 6 times, 4 to 6 times somewhere, but it has given 10 times returns. It has multiplied 10 times. It from 10 rupees it became 100 rupees. Okay, so it is a multi-bagger stock. It has given multi-bagger returns. Then for 3 years it remained in the downtrend. The downtrend started from 100 level. It came down to 55 level. Okay, that means it was in a downtrend, but the fall was not big. It took support of that level. So see, there is a major support level, because this level acted as a strong support, where stock remained above this level for 2 years here in this range, but after that level was broken, it gone down to 10. Okay, here it again came to that level of 55, 50, 55 somewhere. Okay, took support of this level and started upward journey. So it has given fresh upward move, because now by this time the stock has turned multi-bagger, because it has given 10 times return. Multi-bagger returns is given. Okay, and now it is in a way we can say it is in the range. It is trading it almost near its lifetime high, somewhere we could say. So friends, there is a very high probability of the stock
It's a overall, its chart is very beautiful, wonderful chart is this. Okay, so the stock has again after this fall, then see, stock has made this lifetime high of somewhere 174, 175, 178 actually, yes. Look at this level. I am putting at this biggest candle here. So it has made a lifetime high of 178.55. Okay. So friends, after this level, the stock again given some healthy correction, but see this range, friends. Look at this level. I will take one line there. I will shift one line there. So this level is a very strong support, friends. Because what I am showing you, it is on monthly chart. So on monthly chart, the levels of monthly chart are very big. They are very strong levels actually. They are very strong levels. Okay. So see here, stock is in this range, friends. It started upward journey from this level, cross this level of 115. Okay. Sorry, no, not 115. This is the previous high was somewhere around 100. Yes, 100. So after crossing that 100 level, stock has moved up to in this range. Okay. So it remained here in 155 level somewhere. It remained in this range from the level of 112. It remained in the range of somewhere 150, 60 somewhere. Okay. And see, it made a fresh high of 178.55. It has given a little, we can say, correction also. There is a little correction. But see friends, it took support of this previous level. So stock has reversed again from a very strong rock solid support. This support acted as a very strong support level at demand level. There is a great demand, or there is a very high demand for the stock that made it to rise again. And now it is again after make, see, you could see here there are two candles and their bodies, you know, they don't have shadows. 1 minute. These candles don't have any shadow. So it's a kind of tweezer bottom. It's a kind of tweezer bottom, and stock has again given a strong upward. So it's a, we can say it's a bullish and engulf also. No, not bullish engulf. These candles are almost similar. Okay, almost equal in size. Okay, so see the reversal, friends. Here from here it again took support and moved up from this level of 112.15. It started upward journey, and now it is trading at, it has given a closing of 156.45. So friends, I could see that the stock has very high potential or very high chances of going to its level of 175 once. Okay, and if it manages to remain above that level, so there we could see a fresh highs are seen. Maybe 200 or more than 200 is also seen. So friends, overall the stock is very good. Okay, it's a multi-bagger stock. It has given multi-bagger returns. From 10 it moved up to 100. 10 time return once. Okay, then it given some correction also. So from this level of 55 we can say, yeah, it moved up to 150. So again 3 times returns. Again 3 times. It became 3 times from 50 level it moved up to somewhere 155 somewhere. So approximately 3 time returns are there. Again gone to 178. Okay. Right friends. So it has just reversed from its strong support level. So this is a very strong demand level, and you could see the this volume candles also. Look at the size of the volume candles, friends. Okay, so volume candles suggesting that stock can go further higher. So there are very high chances that stock can go up to this level of 175. Okay, so sir, you have got a very wonderful stock. This stock is really good. Suman sir, you have got it right stock. You have got a right stock. Sir, what is your buying price? What is your entry, sir? Suman sir, at what price you have entered in this stock? 140. Okay, sir. Yeah, okay, you have got it right. Okay, you have got it at right time. Okay, sir. Have you kept any stop loss? Sir, what is your purpose? How long will you hold it? How long can you hold it?
ओके ओके, अगर आप ज़्यादा देखो, अगर आपको ज़्यादा मतलब अगर आपने मतलब किस पर्पज से लिया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट से लिया या ट्रेडिंग पर्पज से लिया? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया ना, तो आप इसमें बने रहिए सर, ये बहुत अच्छे रिटर्न देगा आपको। अब इस पे बने रहिए, क्योंकि देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से ना ये ऊपर, देखो पिछली बार ये ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से गिरा था स्टॉक, पीछे मैंने दिखाया आपको एक लेवल पे स्टॉक गिरा था, वहां से यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ के नीचे गया था, तो 10 रुपये पे चला गया था। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। कुछ भी अगर हम करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो उसमें भी हमें स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक पे हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है 8% होना चाहिए। 8% से ज़्यादा कभी भी हम किसी स्टॉक में नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके। तो मतलब एक बार निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक ऐसा होता है, देखो जैसे वहां से वो कितना कौन से प्राइस से वो 10 रुपये पे चला गया था, आई थिंक, या ये 50-60 रुपये के रेंज में, 60 से 80 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से एक बार जब फिसल गया तो 10 रुपये का स्टॉक हो गया, मतलब जो स्टॉक 50 से 80 रुपये का था वो 10 रुपये का हो गया। तो मतलब यहाँ पे बहुत पैनिक हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पैनिक सेलिंग हो गई है, ठीक है। तो मतलब हमें ये समझना होगा कि जब भी स्टॉक थोड़ा सा गिर जाता है, 5-10% गिर जाता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी है, तो हमें वहाँ से एक बार जरूर निकलना चाहिए, ठीक है। हम उसको दोबारा ले सकते हैं जब भी कोई रिवर्सल, देखो यहाँ से इसने फिर से रिवर्सल साइन शो कर दिया, तो हम इस लेवल के ऊपर कहीं एंट्री कर सकते थे वापस से। लेकिन अगर एक बार जिन लोगों ने यहाँ पे अगर खरीदा है, यहाँ पे उनके पास स्टॉक कहीं पर यहाँ पे खरीद रखा है, अगर मान लो एक बार ये फिसल चुका है, यहाँ से नीचे गया है, तो फिर हमें इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये लेवल सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये लेवल तोड़ने का मतलब है यहाँ कहीं आ सकता था, लेकिन ये यहाँ पर भी नहीं रुका है, यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था, इस लेवल पे यहाँ को इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका, तो सीधा सीधा अपना जो इनिशियल लेवल था वहाँ से भी नीचे चला गया सर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट को भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा, कम से कम आपको उस स्टॉक को एक बार महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में जरूर देखना चाहिए कि वो कैसा कर रहा है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है तो उसमें से एक बार निकलना जरूरी है। जैसे देखो ये स्टॉक बहुत, मतलब इस लेवल से गिर के ये कितना नीचे चला गया, अगर मान लो किसी ने 60 के लेवल पे भी खरीदा है, तो वहाँ से गिर के सीधा 10 रुपये का हो गया, तो बहुत ये पैनिक होती है ऐसे में चीज़ों, मतलब कि क्या होती है, कई बार होता है कि स्टॉक्स वहाँ से, ये तो कोई अच्छा स्टॉक है कि इसमें वापस रिवर्सल हुआ है, अदरवाइज कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें रिवर्सल होता ही नहीं, और वहाँ उसी लेवल पे वो ट्रेड करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे आप जेपी एसोसिएट्स को देख लीजिए, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे, ठीक है। वो स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई के बाद वापस उस लेवल पे कभी आए नहीं है, लेकिन ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बना है, इसने मल्टी बैगर 10 टाइम्स रिटर्न दिया है, 10 रुपये से 100 रुपये का हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि 10 टाइम्स रिटर्न दिया। तो कोई भी स्टॉक 5% से लेके 6% या कुछ ऐसे रिटर्न देता है, उसको मल्टी बैगर बोलते हैं, तो मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इसमें, ठीक है। अभी भी स्टॉक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से ये स्टॉक फिर से क्या हुआ है, ऊपर चलो, तो एटलीस्ट ये एक बार यहाँ जाएगा, और बहुत जल्दी यहाँ पे जाएगा सर। ये लेवल जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि इसको हो सकता है इस महीने में ही हो सकता है, ये हो सकता है इस महीने में, नहीं तो अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर ये इस लेवल को एटलीस्ट छुएगा, क्योंकि बहुत पास पहुंच चुका है सर, ये इसी महीने के अंदर छू सकता है इस लेवल को, ठीक है। और अगर उस लेवल पे वो स्टेबल रहता है, देखो जैसे क्या है ना, इसका देखो एक लेवल बनाया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर स्टॉक यहाँ गया, वहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, अब इस लेवल पे, तो इस लेवल इस बार हो सकता है ये थोड़ा सा और भी ऊपर जा सकता है, 200 जाने की इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। 200 के आसपास जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है, ठीक है। देखिए जैसे इस लेवल से ये स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर ये हाई बनाया, तो ये पिछले लेवल को, पिछले हाई को भी ऊपर उससे भी हाई बना लिया, ठीक है। अब इस हाई से इसने एक और फ्रेश हाई बनाया, तो अब इसके बाद अभी आएगा तो कुछ और नया हाई बनाएगा जरूर, ठीक है। इस टाइम इसने 173 कितना बनाया, 178 बनाया, ठीक है। मान लो 180 के पास है, तो ये स्टॉक जो है 200 जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी बन जाती है 200 के आसपास। लेकिन अगर हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और हम ज़्यादा रुक नहीं सकते, तो हमें इसमें यहाँ हमें वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली हमें जब भी कोई स्टॉक में ट्रेड करते हैं हमें इसको देखना पड़ेगा कि स्टॉक को जैसे कोई भी साइन मिलता है, जैसे ऐसे कोई बड़े कैंडल बन जाएगा रेड, तो हमें एक बार निकल जाना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसे कैंडल बनना शुरू हो गई कि और हमें वो देखना होगा कि वो कितने टाइम के लिए स्टॉक ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई स्टॉक कॉन्टिन्यूसली 1 वीक के लिए डाउन ही है,
1 वीक अगर डाउन डाउन ही जा रहा है वो, तो अंडर 1 वीक या हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 वीक्स भी वेट कर सकते हैं। तो अगर वो 2 वीक्स में भी डाउन ही जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो स्टॉक अब और भी डाउन जा सकता है। ठीक है, ये तो मंथली कैंडल्स हैं, अब वीकली कैंडल से भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई स्टॉक 1-2 वीक के लिए डाउन है मतलब अब ये नीचे और भी जा सकता है। ठीक है, तो उसमें वहाँ निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया हो, एक बार उसमें हमें थोड़ा प्रॉफिट देके निकल जाना चाहिए। तो ये बात सबको समझ में आ रही दोस्तों? सो फ्रेंड्स ऑलवेज, या मैं आज आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो जितने भी बड़े बड़े जो FIs DIs आपने सुने होंगे ना, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, मंथली चार्ट या वीकली चार्ट के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, उन लोगों का जो ट्रेड होता है वो मंथली या वीकली लेवल के हिसाब से काम करते हैं। देखो जैसे ये स्टॉक यहाँ आया, जब ये स्टॉक यहाँ से वापस इसने रिवर्सल का साइन दिया, ये देखो आप इसके कैंडल का साइज भी देखो, कुछ बड़े बड़े कैंडल थे, मिक्स थे। ठीक है, यहाँ पे कैंडल बहुत छोटे छोटे हो गए। ठीक है, एक बार छोटे हो गए, फिर देखो छोटे छोटे कैंडल ऊपर को शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना, इस मंथ में बहुत बड़ी मूवमेंट आई है। तो ये इसका मतलब इसका ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया कि अब स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट ले लिया है, इस स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया। तो इसमें नेक्स्ट मंथ कोई भी पर्सन इसमें एंट्री कर सकता था। अगर इस लेवल पे भी हम एंट्री करते 80 लेवल पे भी, तो स्टॉक एक बार 178 गया। ओके, तो मतलब डबल हो गया, डबल रिटर्न दे दिया इसने। कितने टाइम में दिया है? ये 2014 से, ओके 14 से ये किस टाइम में यहाँ पे चला गया? 17। तो मतलब एक मिनट, कौन से मंथ में है, मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। ओके, अप्रैल से ये रहा मई। सो समझ लीजिए आप अप्रॉक्सीमेटली 2-3 साल में से ये स्टॉक डबल हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसने कुछ टाइम पे थोड़ा सा ये बहुत ये रहा है, मतलब कि अप एंड डाउन शो किया स्टॉक ने, लेकिन फिर भी 2-3 साल के अंदर इसने डबल, ये अपना स्टॉक डबल हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि कैसे कोई स्टॉक जो है आपको, जो जितने भी बड़े जो इन्वेस्टर हैं ना फ्रेंड्स, जैसे बड़े बड़े जो FIs DIs होते हैं, ठीक है, वो लोग हमेशा मंथली चार्ट या वीकली चार्ट का ही यूज़ करते हैं, मतलब उन लेवल्स के हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये स्टॉक ऊपर यहाँ से देखो सिंपल हम इसी मंथ में भी एंट्री कर सकते थे क्योंकि ये मंथली कैंडल है एक्चुअली। सो इस लेवल को क्रॉस होने के बाद इसने साइन दे दिया कि स्टॉक अब रिवर्स हो चुका है। सो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद कोई भी एंट्री कर सकता है। यहाँ पे 68, 60, 90, 70 के पास भी कहीं भी एंट्री हम ले सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, इस लेवल, ये लेवल आ रहा है 67। तो 67 लेवल क्रॉस करने के बाद इनकी 70 के ऊपर कोई भी एंट्री करके, ठीक है, हम उसमें, ओके सुजीत सर इज नॉट प्रेजेंट। ओके सर, हाँ सर पूछे ना, पूछे सर। जी सर, जी सर, जी जी जी। सर ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा स्टॉक, ऐसा कोई भी आपको सिस्टम नहीं है कि आपको खुद बता देगा कि भाई आप ये स्टॉक ले लो। वो तो आपको हार्डवर्क उतना करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि कोई सिस्टम आपको खुद ही बता दे कि भाई जाओ स्टॉक को ले लो, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है सर। ठीक है, वैसे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ स्कैनर बना सकते हैं। जैसे मैंने एक दिन एक स्कैनर बताया भी था आई थिंक आपको। ठीक है, तो वैसे हम स्कैनर बना लेंगे और हम उसको क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। तो मैं एक बार चार्टिंग पे जाता हूँ, चार्टिंग साइट पे जाऊंगा। हम स्कैनर बना के सब स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, या कोई वेबसाइट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उन पे भी आपको स्कैनर्स ऐसे मिल सकते हैं। देखो जैसे मैंने एक आपको बताया था, ये मेरा अपना वो है, मतलब स्कैनर है। यहाँ पे आप खुद भी कोई स्कैनर बना सकते हो, कोई स्टडी देख के। यहाँ पे आपको ना इस साइट पे, चार्टिंग साइट पे आपको बहुत सारे स्कैनर्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये सब स्कैनर यहाँ पे रिलेटेड स्कैनर्स बताए हैं। तो बहुत सारे स्कैनर्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बना के रखे हैं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई स्कैनर पसंद आ जाता है तो आप उस स्कैनर को कॉपी करके सेव कर लीजिए, वो कॉपी की फॉर्म में सेव हो जाएगा।
या उसकी जो भी सेटिंग्स हैं उस सेटिंग को आप लगा के आप नया स्कैनर भी बना सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या स्टडी लगाई है, 1 डे को RSI 14 जो है ग्रेटर देन 80 नंबर रखा हुआ है और वॉल्यूम मैंने रखा है लेटेस्ट ग्रेटर देन 1 लाख। तो ये मैंने एक स्कैनर बनाया, मॉडिफिकेशन किया इसमें थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो इसको मैंने बनाया हुआ है। आप देखिए इसमें कुछ स्टॉक्स आपको डेली कुछ स्टॉक्स आपको मिलेंगे। देखो आज सिर्फ 4 स्टॉक्स इसमें फिल्टर हुए हैं, ठीक है। तो आप एंड ऑफ द डे, ड्यूरिंग डे में भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग जो है ना मार्केट टाइम में हम इसको चेक करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स मिल सकते हैं जो कि ऐसे रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो एंड ऑफ द डे पे आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो अच्छे स्टॉक्स होंगे। देखो जैसे विप्रो लिमिटेड आप देखिए कितना अच्छा, मतलब इसने पिछले 2-4 दिन से अच्छा चल रहा है स्टॉक, अच्छा इसने मूवमेंट भी दिया है, इसमें आपने देखा भी होगा। आज भी स्टॉक ने 1% का गेन किया। उसके बाद सोरिल इंफ्रा, ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक को मतलब सोरिल इंफ्रा मेरे ख्याल से काफ़ी लॉन्ग टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक मिनट में चेक करके देखता हूँ। एक नया स्टॉक है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक दोस्तों अभी 636 का हो चुका है और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था 13-14 के आसपास मेरे पोर्टफोलियो में था ये स्टॉक। और तब ये समवेयर राउंड, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये बहुत नीचे था, मतलब हो सकता है 100-200 के रेंज में था। अब ये स्टॉक 600 के आसपास कुछ पहुंचा है, ठीक है। तो मैंने इसको बीच में बेच दिया था, प्रॉफिट लेके मैं निकल गया था इसमें से। अब ये एक और नया स्टॉक हुई है मंधना इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इनका चार्ट भी देख सकते हैं। मैं सबसे पहले चलता हूँ सोरिल पे चलता हूँ सर। सोरिल का काफ़ी अच्छा, देखो इसने आज भी सीधा आज मुझे लग रहा है सीधा ये गैप अप हुआ होगा 5% पे, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स में एक दिन आपको बताया था कि जितने भी स्टॉक्स जो RSI 80 के ऊपर चलते हैं ना, तो RSI 80 लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि ओवरबॉट है, ओवरबॉट है ये, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत है सर फ्रेंड्स। सो इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तभी जाके ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और तभी जाके ये इन स्टॉक्स में ये इस लेवल पे पहुंचे। तो ये स्टॉक्स और भी अच्छा कर सकते हैं, इसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा और हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी आज बताऊंगा कि कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं इसको पहले खोलूंगा सोरिल इंफ्रा सोर्सेज को, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका चार्ट खुल जाएगा। चार्टिंग का भी चार्ट है, उसमें आप देख सकते हो, और ये फ्री चार्टिंग साइट है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। ये देखिए सीधा ये गैप अप हुआ है इसका, ये जो इसका ना आप देख सकते हो एक ऊपर के लिए एक छोटा एरो जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये सीधा ओपन हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई है। ये मैंने कौन सा स्टॉक, एक मिनट, मैंने क्या स्टडीज लगाई है, हाँ 6 मंथ्स के हिसाब से 6 मंथ्स के पीरियड का मैं चार्ट देख रहा हूँ। पूरा जो चार्ट मेरे स्क्रीन पे आ रहा है ये पिछले 6 महीने का चार्ट है, पिछले 6 महीने का चार्ट है। और इस चार्ट में आप देख सकते हो मैंने डेली चार्ट लगाया, तो डेली चार्ट में देखो सीधा ये खुला है, यहाँ पे सीधा गैप ऑफ ओपनिंग हुई है उसकी। पिछले दिन का देखिए, पिछले आप देखो कुछ दिनों से देखिए कितने दिन से स्टॉक ऊपर है, ये डेली कैंडल देखो, तो यहाँ से इसने एक मूवमेंट पकड़ा हुआ है। अब यहाँ से कह सकते हो, मैंने इसमें एक देखो ये भी लगाया, इचिमोकू क्लाउड लगाया हुआ है, इचिमोकू क्लाउड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर, मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें जब भी इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक आता है, ठीक है, ये जो रेड लाइन है, ये रेड एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर आ चुका है, यानी कि इस लेवल के बाद हम इस स्टॉक में कहीं पे एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर कहीं पर भी हम इसको एंट्री ले लेते, इस लेवल के ऊपर भी, जैसे देखो डबल टॉप लेवल बन रहा है, तो इसके ऊपर यानी कि 367 के ऊपर अगर हम एंट्री लेते तो आज स्टॉक कहाँ पहुंचा है, आज ये स्टॉक पहुंचा है 765, ठीक है। तो बहुत बढ़िया इसने जो है, अब इसका देखिए मतलब कैसे अपवर्ड है, इसमें अपर सर्किट लगते हैं, सीधे अपर सर्किट लगे जा रहे हैं स्टॉक पे 5%, मतलब कि ये डेली ऐसे करते हैं। और ये देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल्स हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अपर सर्किट लग के ये क्लोज हुआ है, वहीं पर फुल डे वहाँ रहा है, ठीक है। ये देखिए 3 दिन यहाँ पे क्या 1 2 3 दिन, इन 3 दिनों में बड़ी कैंडल्स बनी है, ठीक है। अगले दिन थोड़ा सा ये, इस दिन थोड़ा सा मतलब गैप अप हुआ लेकिन वहीं पे रहा है। अगले दिन देखिए तो अभी भी स्टॉक जो है मतलब, लेकिन अभी स्टॉक काफी दूर पहुंच चुका, अभी यहाँ पे एंट्री लेने का टाइम नहीं है, अभी हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते, डेली चार्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से काफी दूर हो चुका है अपने लेवल से। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों, हम इसमें एक इंडिकेटर लगा सकते हैं, सुपर ट्रेंड। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पे, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया हुआ है। सुपर ट्रेंड की लाइन कौन सी, एक बार देखना पड़ेगा। सुपर ट्रेंड ये लाइन होगी,
हाँ जी यही लाइन है, यस। तो ये सुपर ट्रेंड की लाइन काफ़ी दूर है, मतलब अभी काफ़ी दूर हो चुका है अपने लेवल से, काफ़ी दूर। और ये देखिए ये है आरएसआई जो है 80 के ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 66 के ऊपर है ये। एक मिनट, 80 कहाँ पे है, ये समझो यहाँ पे इस लेवल के बाद दोस्तों, यहाँ इस लेवल के ऊपर यहाँ पे इसने 80 को टच किया। आरएसआई 80 को टच करने के बाद देखो कितना ऊपर गया। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक आरएसआई 80 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे सेल करना चाहिए। ये आपने भी सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई स्टॉक आरएसआई 80 के ऊपर जाता है तो वो हमें वहाँ सेल करना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। हमें उस आरएसआई जब 80 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत है उस स्टॉक में, तो उस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर हम इसको राइट टाइम में कैच करेंगे। जैसे मान लो आपने इस लेवल को देखो, जैसे 80 के ऊपर, मैं 80 का दिखाता हूँ, ये 80 लेवल किस प्राइस पे 80 को छुआ है, यहाँ पर कौन सा लेवल पे छुआ है, 388 390 पे रख लीजिए। अगर आप इस लेवल के ऊपर इसको बाई कर लेते, जब ये 80 आरएसआई 80 के ऊपर गया है, तो लेट अस टेक इट 400 मान लो, 400 से अगर मान के चलो तो अभी कितने पहुंच गया है, 700 पहुंचे, 750। तो मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉक डबल होने वाला है, ऑलमोस्ट डबल आरएसआई 80 के ऊपर जाने के बाद। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आरएसआई 80 के ऊपर जाने का मतलब है स्टॉक को सेल करना, वो बिल्कुल रॉन्ग है। उनको मतलब उनको सही चीज पता नहीं है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। लेकिन हाँ, इस चीज को ट्रैक करने के लिए मैं आपको अभी ये जो चार्टिंग का जो है ना, चार्टिंग साइड का जो चार्ट है, ये थोड़ा सा मतलब इतना वो नहीं है, मतलब ये एंड ऑफ द डे पे आप इस चार्ट को स्टडी कर सकते हो। मैं इसको शॉर्टर टाइम में एक बार चेक करके बताऊंगा कि हमें इसको आवरली चार्ट के हिसाब से ट्रैक करना पड़ेगा। मैं 1 आवर के हिसाब से इसको ट्रैक करता हूँ एक बार, आवरली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। आवरली चार्ट हम खोल लेते हैं, लेकिन यहाँ 6 मंथ की जगह इसको 1 मंथ का मैं कर देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। सो मैं यहाँ पे 1 मंथ का चेक करूँगा दोस्तों, 1 आवर। इसको हमें आवरली चार्ट के हिसाब से ट्रैक करना पड़ेगा। वैसे तो ये स्टॉक क्लियरली आप देख सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको पीछे दिखाया चार्ट कैसा, इसका बिल्कुल अपर सर्कल लगते जा रहे हैं इसको। ये देखिए अपर सर्कल लग गया, फुल डे बिगिनिंग में ये अपर सर्कल लग गया और फिर फुल डे ऐसे हो गया। नेक्स्ट डे सीधा सीधा गैप अप ओपन हुआ है, अपर सर्कल, ठीक है। इस पे अपर सर्कल ही लगे जा रहा है स्टॉक पे, ठीक है। अपर सर्कल पे अपर, यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है। एक मिनट, मुझे सुपर ट्रेंड का लाइन कौन सी है, एक बार मैं इचुमाको को हटा के, क्योंकि थोड़ा सा ये आई थिंक सुपर ट्रेंड की ये वाली लाइन है, हाँ ग्रीन लाइन। तो हमें इसमें देखो दोस्तों कैसे करना है, हमें इसको सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करते जाना है। जब तक ये आवरली चार्ट पे सुपर ट्रेंड को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, आवरली चार्ट बोल रहा हूँ मैं, डेली के चार्ट के हिसाब से हम इसमें एंट्री करेंगे जब ये आरएसआई जब 80 को क्रॉस करेगा, तब हम इसको बाई करेंगे डेली चार्ट के हिसाब से। और एग्जिट के लिए हम लोग सुपर ट्रेंड के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, जब भी सुपर ट्रेंड को तोड़ के ये स्टॉक नीचे जाएगा तो वहां पे हम एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे इसमें से। अगर ये दोबारा उस लेवल के ऊपर क्रॉस होता है, फिर से डेली चार्ट के, अगर मान लो कभी होता है डेली चार्ट को उसने सुपर ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, फिर से वो आरएसआई को आवरली चार्ट पे आरएसआई क्रॉस करके ऊपर जाता है, 1-2 दिन वहां रहता है, उसके ऊपर लेवल रहता है, तो फिर से हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। मैं एक बार इसको क्या बोलते हैं, इसमें मैं इचिमाकू को थोड़ा सा एक बार रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, इचिमाकू इधर था, नहीं चेक नहीं है। So friends, always remember that this concept that any stock that is trading above 80 RSI 80 is to be shorted. That's a wrong concept. That is not the right concept. जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई RSI के ऊपर स्टॉक जाएगा तो उसको हमें बेचना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक, मैंने आपको अभी ये स्टॉक दिखाया
कि इसने RSI 80 के ऊपर होते हुए कितना बड़ा इसने जो है, और ये अपर सर्किट ही लगते जा रहे हैं। तो इस स्टॉक में बहुत अच्छा कुछ है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा है दोस्तों कि ये स्टॉक नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। यानी कि कोई इन्वेस्टर्स को बेचना ही नहीं चाहता है, इसको कोई बेचना ही नहीं चाहता दोस्तों। ये देखिए ये है हमारा ये है RSI, सॉरी सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड ने एक बार यहाँ पर जो है एक बार इस लेवल पे इसने यहाँ पे सेल दिया था, ठीक है, आवली चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ। तो एक बार चाहे हम यहाँ से निकल जाते हैं या हम थोड़ा सा हम अपना स्टॉप लॉस को पिछले लेवल पे, जैसे कोई पिछला लेवल है, कोई भी स्टैब्लिश लेवल है, आप उस लेवल पे भी अपने स्टॉप लॉस को मतलब कि अपने हिसाब से आप समझ लीजिए, अगर वो लेवल तोड़ेगा तो हम उसमें से निकल जाएंगे। तो आप देखिए ये थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है एक दिन के लिए, थोड़ा सा, अगले दिन नेक्स्ट डे फिर से ऊपर चला स्टॉक। तो ये यहाँ पे फॉल्स सिग्नल हो गया, यानी कि कभी कभी जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड कभी कभी फॉल्स सिग्नल भी देगा। तो ये फॉल्स सिग्नल फिर से इसमें सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर का सिग्नल आ चुका है। आवली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, आवली चार्ट में भी ये स्टॉक जो अभी अच्छा ही ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमें ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें एक बार वो दिखाता हूँ आपको, या मैं ऐसा करता हूँ इसको investing.com में दिखाऊंगा, क्योंकि investing.com की साइट पे हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। मैं इसको वापस सेटिंग लेके चलता हूँ, वापस जो सेटिंग मैंने रखी थी डेली चार्ट के हिसाब से सेटिंग जो रखी है मैं उसी में जाऊँगा, और मैं ये स्टॉक को आपको एक बार इचिमाकू को मैं फिर से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं इस स्टॉक को आपको एक बार investing.com में दिखाता हूँ कि कैसे स्टॉक ने हम कहाँ पर इसमें, क्योंकि देखो हमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव चार्ट चाहिए। ये चार्ट जो है इंटरेक्टिव नहीं है, ये चार्ट जो है एक किस्म का एंड ऑफ द डे पे चार्ट है। ये ऐसा स्टेबल चार्ट दिखेगा, सिर्फ लेवल बताएगा, खुलेगा, लेकिन ये चार्ट का प्रॉपर वे में जैसे जो रनिंग चार्ट होता है जैसे यहाँ पे है, वैसा वाला चार्ट आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्टॉक कौन सा है, सोरिल, SORIL, सोरिल इंफ्रा। सोरिल इंफ्रा को हम ढूंढेंगे यहाँ पे। तो इस स्टॉक में कुछ बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, कंपनी का स्टॉक है। ये देखिए, इसमें मैं यहाँ पे यूज करूँगा सुपर ट्रेंड, क्योंकि इसको हमने जब भी ट्रैक करना है सुपर ट्रेंड के हिसाब से करना है, क्योंकि सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छा बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको मतलब बहुत अच्छा सिग्नल बताएगा। ये देखिए मंथली चार्ट मैंने खोल रखा है, तो आप देखिए स्टॉक में कैसे इतना बड़ा इसका मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं छोटा कर लेता हूँ चार्ट को, और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने, हाँ, ये जो RSI जो यहाँ का RSI है ये एक्चुअली 70-30 सेटिंग है। मैं इसको एक बार 80-20 लगा के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हम 80 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 80 के ऊपर जब इवन 70 के ऊपर भी जब स्टॉक ट्रेड करता है तो हम उसको 80-30 रख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो आप इस स्टॉक को देखिए, ये देखिए ये RSI जो है मतलब अभी 70 के ऊपर ही ट्रैक कर रहा है। 70 के ऊपर में इसको देख सकते हैं, 70-80 की रेंज में जब भी हो तो आप इस स्टॉक में बढ़े रह सकते हैं। अब मैं इसका जो है मतलब कि मंथली चार्ट में तो बिल्कुल क्लियर, हम इसको एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, एक बार वीकली चार्ट में देख लेते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। वैसे तो आप दिखाई दे रहा है कि स्टॉक बहुत अच्छा मूव किया हुआ है। ये देखिए वीकली के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे सही एंट्री बन रही थी, ठीक है। तो जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना, जैसे FIs DIs हैं, वो छोटा लेवल देखते ही नहीं, ठीक है। उनका क्या होता है, हम लोग जैसे डेली चार्ट पे एंट्री करते हैं ना, वो लोग जो है वो मैंने आपको बताया कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। जब भी कोई स्टॉक कोई बड़े मेजर सपोर्ट लेवल पे आता है वहां से वो बाई करते हैं, लेकिन वो तब बाई करते हैं जहाँ पे जब वो रिवर्सल का कोई इंडिकेशन देता है। देखो जैसे ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा स्टॉक गिर रहा था, इसमें कुछ गिरावट आई स्टॉक पे, यहाँ ये रिवर्सल कैंडल बन गया, तो वो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ से बाई कर लेंगे या इस लेवल के ऊपर बाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए स्टॉक में कितना अच्छा मूवमेंट आया, तो वो लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं क्योंकि उससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए एक बार डेली चार्ट में मैं दिखाऊंगा कि डेली चार्ट में हम लोग इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं जब भी कोई स्टॉक RSI 80 के ऊपर जा रहा, देखो जैसे यहाँ से
इस लेवल पे है ना, 80 की लाइन क्रॉस कर ली इसने, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था उस पर। तो 385 दिखा रहा है यहाँ पे, 385 पे इसने 80 की लाइन को क्रॉस किया है, ये मान के चलिए। अब नेक्स्ट इसको नेक्स्ट डे यहाँ पे भी अगर 400 पे भी कहीं यहाँ पे बाई कर लेते हैं, इस रेंज में भी सीधा सीधा वैसे गैप अप हुआ है 394, और 394 के बाद सीधा गैप अप हुआ है 416। ओके, सो सीधा सीधा स्टॉक में एक अपर सर्किट लग गया, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे इसको कहीं पर जो है हम इस पे एंट्री ले सकते थे, और सुपर ट्रेंड के हिसाब से इसमें यहाँ से एंट्री बनी हुई है, तो हम इस रेंज में भी एंट्री कहीं पे ले सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट पिछले लेवल पे होना चाहिए, या हम इसको स्टॉप लॉस के तौर पर मैंने कहा कि अगर हम डेली चार्ट पे हम इसको अगर बाई कर रहे हैं तो हमें आवरली चार्ट के हिसाब से हमें उसको उसमें से निकलना होगा। अगर आवरली चार्ट में सुपर ट्रेंड को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हमें एक बार वहां से जरूर निकलना चाहिए। या हम कोई पिछला जो एस्टैब्लिश, देखो जैसे ये लेवल है ना, ये लेवल आ रहा है हमारा 214, ओके। सो एक बार स्टॉक हमने यहाँ पे जैसे खरीद लिया 275, ठीक है, तो हम कोई पिछला एक लेवल, जैसे मान लो हम इसके हाई पे भी रख सकते हैं। हम ये हमें डिसाइड करना होगा हम कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। हम अगर हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम पिछले कोई लेवल को लेके हम पिछले लेवल के हिसाब से हम उसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा, लेकिन अभी अगर 275 है तो आप इसको मतलब कम से कम भी कोई 15-20 रुपये का आपको रखना पड़ेगा, 20-30 रुपये का आप गैप लेके आप रख लीजिए, ठीक है। ये मतलब मान लो 240-50 का लेवल का आप रख के आप इसमें एंट्री कर सकते थे, इतना स्टॉप लॉस। या आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा, एक बार मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ, आवली चार्ट पे देख, एक बार आवली चार्ट में इसको देखेंगे। सॉरी, एक बार आप मुझे वो स्टडी, एक मिनट, ये आएगा, यस, मैं यहाँ से इसको मार्क कर लेता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे एंट्री के लिए इसको मार्क कर लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे एंट्री लेवल मार्क कर दिया है इसका, कि अगर हम इस पे एंटर करते हैं यहाँ इस लेवल पे, और हमारा स्टॉप लॉस कहीं पिछले लेवल पे के आसपास होता है, अगर हम इस लेवल पे रख लेते हैं, हम जैसे मान लो हम स्टॉप लॉस 240 पे भी रख लेते हैं, तो एक बार मैं इसको ये दिखाऊंगा कि आवरली चार्ट पे ये कैसा दिखाई दे रहा है। हमें आवरली चार्ट को देखना, मैं इस लेवल को एक लाइन से भी मार्क कर लूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले लूंगा, और मैं इस लेवल को मार्क करके रख लूंगा 240, सॉरी 236 लग गया, क्योंकि देखो पिछला एस्टैब्लिश लेवल है 240 के आसपास मान के चलिए हम रख लेते हैं एक बार। ओके, अब मैं इसको आपको आवली चार्ट पे दिखाऊंगा। डेली चार्ट में मैंने दिखा दिया आपको कहाँ से हमने एंट्री करी थी, क्योंकि सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। अब हम वहाँ जाएंगे, एक मिनट छोटा करना पड़ेगा इसको, से को यहाँ से हटाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जब भी ये देखिए ये हमारा लेवल है, यहाँ पे हमने स्टॉक में एंट्री करी हुई है और ये सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, ठीक है। एक उसको बड़ा कर दूंगा, एक मिनट, यहाँ पे हम इस लेवल पे हमने एंट्री करी दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमने एंट्री करी है स्टॉक में, एक बार यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली है, ठीक है, हम पिछले लेवल के पास हम यहाँ पर भी कहीं स्टॉप लॉस लगा, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे हमने 240 का स्टॉप लॉस रख लिया, या 240-50 का भी स्टॉप लॉस रख के हम इसमें इस लेवल पे कहीं पर भी, मान लो हम यहाँ एंट्री कर लेते हैं इस लेवल पे, मान लो हमने एंट्री कर ली 280 पे, ठीक है, तो हम थोड़ा सा गैप रख के, अब वो आपको थोड़ा सा डिसाइड करना होगा। अगर हम 280 पे हम एंट्री ले रहे हैं सुपर ट्रेंड के हिसाब से, तो हाँ, तो आप सुपर ट्रेंड की बेस को भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये जो लेवल है एस्टैब्लिश लेवल, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं, जब सुपर ट्रेंड ने ऐसा दिया हो और स्टॉक में ऐसा कुछ कंडीशन हो, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये लाइन एस्टैब्लिश नहीं होती। जब ये लाइन एस्टैब्लिश होती है, यानी कि हमें 2-4 दिन यहाँ पे 2-4 ये कुछ टाइम का वेट है, मे बी 1 या 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे दोस्तों। तो मैं इस लेवल को यहाँ से शिफ्ट करूँगा। देखो आपको ये जो लाइन है ना RSI का, ये खुद की लाइन जो है यही खुद में एक स्टॉप लॉस का काम करती है, ये लाइन में बताऊंगा ये वाला। तो आप थोड़ा सा उस लेवल से हल्का सा नीचे रखिए,
जैसे मैंने थोड़ा सा उसके नीचे रखा हुआ है, तो ये लेवल निकल के आ रहा है 260। तो यानी कि हम यहाँ पे 20 रुपये के रिस्क के साथ अगर हम यहाँ पे 275 ये जो भी कैंडल है, हाँ 275 80 लेटेस्ट टेक हम 280 पे एंट्री कर रहे हैं। इधर हमने एंट्री कर ली है स्टॉक में, ओके। और हमने इस लेवल पे स्टॉप लॉस के सॉरी सुपर ट्रेंड के हिसाब से जो स्टॉप लॉस की जो लाइन है, इस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक बार स्टॉक यहाँ से 280 से स्टॉक कितना चला गया, स्टॉक ये चला गया 327। तो ये 327 जाने के बाद स्टॉक ने देखो अगला कैंडल, देखो ये रिवर्सल कैंडल बन रही है दोस्तों। आपको थोड़ा कैंडल्स को भी समझना होगा कि कौन सी कैंडल रिवर्सल है। ये देखो एक ग्रीन कैंडल है और उतने ही साइज है, उससे भी बड़ी जो है कैंडल है रेड है, लेकिन देखो दोनों का टॉप इक्वल है। इसको हम कहते हैं ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप जो एक रिवर्सल साइन है दोस्तों, ये एक रिवर्सल कैंडल है। दिस इज अ रिवर्सल कैंडल, सो वी हैव टू एग्जिट हियर एज पर दिस आवरली चार्ट। तो मैंने कहा कि आवरली चार्ट के साथ हम इसमें एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है, या हम डेली चार्ट के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। अगर स्टॉक में कोई अच्छा कोई देखो, जैसे ये माइनर सी गिरावट है एक्चुअली, एक दिन की मान लो हल्की सी गिरावट अगर हुई भी है तो डजंट मैटर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टॉक आपकी एंट्री से काफ़ी ऊपर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक किस्म का फॉल्स सिग्नल ये दिया है सुपर ट्रेंड ने कि यहाँ से मैं एग्जिट, तो अगर मान लो एक बार यहाँ पे एग्जिट भी हो जाता है, इस लेवल पे हम एग्जिट भी कर देते 308 पे, तो अगर हमने 280 पे भी खरीदा है और 308 पे हम निकल गए तो भी हमारा कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और आप इसी स्टॉक में दोबारा से एंट्री कर सकते थे इस लेवल के ऊपर। देखो नेक्स्ट इस दिन ये गैप अप हुआ और स्टॉक फुल डे यहाँ पे अपर सर्किट के साथ ये बंद खुला है, सॉरी बंद हुआ है एक्चुअली। यहां से फिर से सुपर ट्रेंड ने देखो आवली चार्ट पे इसने फिर से क्या कर लिया, एक बार सेल दे दिया, ठीक है। या मैंने कहा कि आप पिछले लेवल के हिसाब से आप दोस्तों इसमें पिछले लेवल को आप मार्क करिए और उस लेवल को आप क्या करिए, देखो जैसे ये पिछला एस्टैब्लिश लेवल है, अगर आप यहाँ मान लो अपना, अगर आपने सपोज यहाँ पे एंट्री की है, हम पिछले लेवल को देखेंगे कि पिछले लेवल को अगर नहीं तोड़ता तो हम उसमें बने रह सकते हैं। जैसे इस लेवल के ऊपर है, अब यहाँ पे आके स्टॉक, ठीक है, तो हम जो है हमारी एंट्री से थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे, हल्का सा ऊपर रख लेंगे, ताकि हमारा लॉस ना हो एटलीस्ट, क्योंकि हम जब निकलेंगे तो हम इसमें से प्रॉफिट में निकले चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ कहीं भी इसके टॉप पे भी रख लेते हैं, एंट्री लेवल के थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं 5-10 रुपये, जैसे मान लो 80 पे हमने एंट्री करी है तो हम 90 के लेवल पे स्टॉप लॉस बना के रखते हैं कि अगर ये गिर रहा है मान लो, ये बेस्ट ये होता है कि हम पहले यहाँ से एक बार प्रॉफिट लेके, ये हमें लेकिन समझ ना होगा, हमें पता लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। जैसे मैंने कहा ये ट्यूजर टॉप बन रहा है, ट्यूजर टॉप एक रिवर्सल कैंडल है, रिवर्सल साइन है, तो ये शो कर रहा है कि अब स्टॉक गिर सकता है। तो यहाँ से हमें जो एक बार प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए था 327 के आसपास, या मान लो हम 320 पे भी निकल जाते एक बार, 318 के पास भी निकल जाते तो हमारा अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ है, ओके। तो एक बार हम इसका फिर से वेट कर सकते हैं कि जब स्टॉक फिर से क्या होगा, मतलब कोई ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे मान लो यहाँ से स्टॉक फिर से देखो ये लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से, तो हम इस लेवल पे कहीं फिर से एंट्री कर सकते हैं, इस लेवल पे स्टॉप लॉस रख के, स्टॉप लॉस 297 का रख के हम इसको एंट्री कर सकते हैं। ये लेवल आ रहा है 316, तो मान लो हम इस लेवल के ऊपर हम यानी कि 300 के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे, तो पिछले लेवल के साथ साथ स्टॉप लॉस रखते जाइए। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप उसको ऐसे ऐसे ट्रैक करते जाइए। अब देखो जैसे अगर हम यहाँ पे एंट्री कर लेते 316 पे, 1670 में हमने एंट्री कर ली होती है इस दिन, ये स्टॉक एक बार इतना ऊपर चला गया, 350 पे भी चला गया, ठीक है, 350 पे चला गया, वहां से इसने सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे इस कैंडल पे सेल दे दिया, तो हम एक बार यहाँ से निकल जाते 360 के आसपास भी कहीं निकल जाते, तो भी मतलब कि हमने जब भी इसमें स्टॉप लॉस लगाना, इस केस में पहले तो पिछले इनिशियल लेवल पे हमने रखना है कि जो स्टैब्लिश, देखो जैसे ये लेवल स्टैब्लिश हुआ है, इस लेवल के पास हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हमने यहाँ एंट्री ली है तो हम इसको इस लेवल, और सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी यही स्टॉप लॉस बन रहा है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लेवल यही आ रहा है, ठीक है, यही लेवल हमारा स्टॉप लॉस है। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब कोई 15 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, 15-16 रुपये का, 18 रुपये, 20 रुपये रख लो, मैक्सिमम 20 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। तो हम इस पर ऐसे करके हम इस पर ट्रैक करेंगे, ठीक है। जब स्टॉक ने इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया तो हमारा जो है, हमें अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट हमें इस लेवल पे रखना चाहिए एटलीस्ट,
यानी कि हमारी बाइंग के ऊपर है और जो पिछला लेवल था, जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसके ऊपर, यानी कि 328 के पास हम या 320 330 के पास हम कहीं स्टॉप लॉस रखते तो 315 के पास हमारी एंट्री कहीं हुई है, 15 16 18 भी रख लो, तो मतलब तब भी अगर हम यहाँ से फिर से निकलते तो 10 रुपये प्रॉफिट लेके हम निकल जाते कम से कम। ठीक है, यहाँ से ये फिर से मतलब देखो सुपर ट्रेंड ने बाई नहीं बोला, लेकिन इसने एक लेवल जो है इस्टेब्लिश दे दिया, इसने रिवर्सल का शो किया। हम यहाँ पे वेट करेंगे, सुपर ट्रेंड जब फिर से बाई देगा हम उस पर एंट्री करेंगे। तो हम इस लेवल पे फिर से मान लो हम इस लेवल पे एंट्री कर ली हमने। ठीक है, इमीडिएट हम उस टाइम पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा कैंडल इस्टेब्लिश होने देंगे और फिर हम जैसे मान लो ये कैंडल पे एंट्री दी, हम इस कैंडल पे एंटर होंगे, तीसरी कैंडल पे एंटर होंगे, इस कैंडल पे कहीं पर भी 344 5 कहीं भी एंटर हम हो गए। ठीक है, इमीडिएट लेवल जो है ये वाला लेवल है 330 है, तो हम इस लेवल पे स्टॉप लॉस रख के 15 रुपये का स्टॉप लॉस हमारा फिर से आ रहा है, या अगर हम इस लेवल को भी रख लेते हैं तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, 20-25 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो हम वो स्टॉप लॉस लगा के इसको ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये अगले लेवल पे स्टॉक देखो, फिर ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें जो है मतलब अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ट्रैक करके हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके इस स्टॉक में काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये देखिए, तो इस लेवल, ये जो लेवल है ना, इस लेवल के बाद तो कोई भी फॉल्स सिग्नल जनरेट हुआ ही नहीं है। पिछले कॉन्टिन्यूस ये कब से चल रहा है, ये स्टॉक ने 30 सितंबर को इसने 30 अगस्त को फ्रेंड्स, 30 अगस्त को सॉरी सितंबर में चल रहा है, सॉरी 30 अगस्त को स्टॉक ने फिर से जो है बाइंग सिग्नल दे दिया। तो हम इस लेवल पे यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं, ये यहाँ पे सिग्नल दिया, हम इस तीसरे चौथे कैंडल पे हम एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए, उसी एंट्री के बाद देखो स्टॉक ने काफ़ी अप डाउन मूवमेंट दिखाई, लेकिन देखो जो ये RSI का सॉरी सुपर ट्रेंड का जो लेवल है, इस लेवल का इसने सपोर्ट लिया है, तो इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनता है। और ये भी हमारे पास लेवल भी है, हम इस लेवल पे 511 के पास 510 के पास हम अपना स्टॉप लॉस रख के हम इसको यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। 575 है लेवल, बड़ा आ रहा है, तो हम इसको इमीडिएट इस लेवल के पास 526-30 के पास हम स्टॉप लॉस रख के हम इस पर एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो उसके बाद तो ये स्टॉक सीधे सीधे 700 पहुँच गया वहाँ से, मतलब 570 के पास अगर हम बाई कर लेते हैं, यहाँ के 570 72 75 भी अगर हम यहाँ पे एंट्री करते, वहाँ से स्टॉक जो अभी जो है आई थिंक इतना ही लेवल पे है, हाँ यही है, यस ये लेवल है फ्रेंड्स। तो आज ये स्टॉक जो है 769 के पास पहुँच चुका है। ठीक है, और मैंने आपको RSI भी दिखाया कि RSI के ये स्टॉक जो है 80 के ऊपर चल रहा है, तो ये कभी भी मत सोचिए कि अगर स्टॉक RSI 80 के ऊपर है तो वो शॉर्टिंग कैंडिडेट है, नहीं, उसको हमें देखना पड़ेगा। वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी कभी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना अच्छा स्टॉक में जो है अप ट्रेंड है, लेकिन आप हाँ यहाँ पे हमारी एंट्री काफी रिस्की हो सकती है। हाँ, यहाँ पे उसने वो भी बताया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बता रहा है बेरिश रिवर्सल है। ठीक है, ओके, इस चार्टिंग साइड के सॉरी चार्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, investing.com पे आपको दोस्तों कुछ आपको पैटर्न्स भी मिलते हैं, लेकिन हाँ ये देखो यहाँ पर भी था, लेकिन फिर भी कोई गिरावट नहीं आई स्टॉक में, स्टॉक ऊपर ही चलते जा रहा है। तो आप सुपर ट्रेंड का यूज़ कीजिए, आप जो है RSI का यूज़ कीजिए, और आप जो मैंने आपको स्कैनर बताया ना, आप स्कैनर के हिसाब से स्टॉक लीजिए। आपको ऐसे स्टॉक नहीं लेना, आप स्कैनर के हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उसमें आप ट्रेड कीजिए। लेकिन एंट्री के लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक को प्रॉपर लेवल के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार इसको बंद करूँगा, मैं दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, अभी मैं दूसरा स्टॉक यहाँ से देखता हूँ। सो इसका बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि आप स्कैनर का यूज़ कीजिए, और स्कैनर के हिसाब से जो अच्छे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं उनमें आप प्रॉपर जो है डेली चार्ट के हिसाब से लेवल देखिए कि कहाँ पे उसमें जो है, जब डेली चार्ट में RSI सॉरी क्या बोलते हैं सुपर ट्रेंड ने उसको बाइंग दिया हुआ है, उसके बाद आवरली चार्ट के हिसाब से उसको आप एंट्री ले सकते हो, और आवरली चार्ट के हिसाब से आप जो है छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। या मैंने कहा कि जो पिछला लेवल जो एस्टैब्लिश हुआ है उस लेवल के ऊपर आप जो है उसमें बने रहिए। देखो जैसे अब विप्रो का मैं बताता हूँ, विप्रो खोल के हम दिखाते हैं विप्रो का स्टॉक कैसे चल रहा है।
मैं एक बार यही इसी साइड पे दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए विप्रो पे कहाँ पे एंट्री हुई है, मतलब 80 के ऊपर यहाँ पे आया हुआ समझ, यहाँ 80 के ऊपर यहाँ हुआ है और देखो अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। इस दिन स्टॉक ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था 326 के पास। अगर हम इसको आवली चार्ट में चेक करते हैं तो आवली चार्ट में उसी दिन आपको, मतलब अगर हम लेते इसको तो उसी दिन प्रॉफिट लेके भी आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन उसने वो सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया होगा, श्योरली ब्रेक किया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, स्टॉक बहुत बड़ा जंप करके वापस नीचे भी आया, लेकिन हाँ जो पिछला लेवल है इसने पिछले लेवल को ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टॉक चाहे कितना भी ऊपर गया हो वापस आया है, लेकिन इसने जिस लेवल पे एंट्री थी हमारी उस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो हम इस लेवल को 300 के लेवल को हम क्या कर सकते थे, मतलब अपना स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में बने रहते हैं, ठीक है। अब 300 से स्टॉक कितना गया, 326 गया, ओके। और 308 के आसपास कहीं इसने लो भी बनाया, समवेयर लो बना लिया इसने कोई 305 का, और 308 के पास इसने क्लोजिंग भी दी है, और फिर से वापस जाके अब ये 26 के आसपास फिर से चला गया 27, और अब इसने क्लोजिंग दी है 324 के पास, 324.70 इधर ये प्राइस आपको दिख रही है, ओके। अब मैं इसको दिखाऊंगा investing.com में, मैं दिखाता हूँ इस एक मिनट कौन सा स्टॉक था, ओके विप्रो, ओके विप्रो का स्टॉक देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक बार मैं RSI का भी यूज करूंगा, या स्टोचैस्टिक RSI का भी हम यूज करेंगे, हम दोनों इंडिकेटर लगाते हैं, RSI और स्टोचैस्टिक RSI का भी लगा के देखते हैं, ओके। तो ये देखिए इसने डेली चार्ट पे यहाँ से एंट्री दी है दोस्तों, हम डेली चार्ट पे इस रेंज पे हम एंटर कर सकते थे 273 के पास, इस कैंडल पे हम एंटर करते हैं 273 275 पे हम एंट्री कर लेते हैं इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ से इसने बाइंग दे दी है यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल के ऊपर हम इसको बाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो जहाँ पे उसने कई बार स्टॉप लॉस कई बार सुपर ट्रेंड जहाँ पे एंट्री देता है वहीं से कई बार क्या होता है वो वापस भी हो सकता है। तो हम इस लेवल पे हमारे पास जब एक अच्छा बड़ा कैंडल आ रहा है तो हम मतलब कि मान लो दूसरे तीसरे कैंडल में तीसरे कैंडल पे एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं अगर 275 पे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ इस लेवल पे आ गया, इनिशियली हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे है 262। आप देखिए पिछला कोई भी लेवल है ना, वहाँ पे जो कोई लेवल बना हुआ है उस लेवल को आप इमीडिएट लेवल को आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है आप इस लेवल को या इस लेवल को देखो, ये लेवल काफ़ी स्टैब्लिश्ड है, क्योंकि देखो इस लेवल पे ये स्टॉक गिरते हुए स्टॉक यहाँ पे एक बार यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस लेवल को इसने सपोर्ट लिया। तो ये लेवल को हम एक लाइन से मार्क कर लूँगा, मैं एक हम लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर मैं इसको मार्क कर दूंगा, इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे दोस्तों। ये लेवल निकल के आ रहा है, एक मिनट कितना आ रहा है भाई, 255 का लेवल हमारा निकल के आ रहा है, ये बहुत अच्छा स्टॉप लॉस हमारा हो सकता है, ठीक है। हमने एंट्री करी है 273 275 के आसपास और 255, ठीक है। तो मतलब 20 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम एक पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेने के रेडी हैं तो हमें कम से कम 40 या 60 रुपये का हमारा प्रॉफिट मिलना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक बार स्टॉक ने यहाँ से ऊपर जाके इतना वो करा है 289.90 के पास छुआ है इधर कहीं आसपास, ठीक है। फिर से थोड़ा सा हल्का सा ये मतलब नीचे भी आया हुआ है, ओके 264 के पास भी है, लेकिन इसने ये लेवल नहीं तोड़ा दोस्तों। और ये देखिए मतलब कुछ दिन ये स्टॉक इसी रेंज में रहा है, लेकिन इसने लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे किसी लेवल को देखे, किसी सपोर्ट लेवल के हिसाब से हम इसमें एंट्री करी है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से हमने एंट्री करी है, स्टॉक में जो है यार सही क्या बोलते हैं उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें क्रॉस कर ली है वो लाइन, सर ये 70 के ऊपर भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, ओके 70 के ऊपर क्रॉस किया मतलब कहीं 80 के पास गया होगा, ये 75 कुछ गया है, ठीक है।
ओके तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे सुपर ट्रेंड के हिसाब से, और पिछले कोई स्टैब्लिश लेवल को देखो, जैसे ये लेवल दिख रहा है, ये डेली चार्ट में एक अच्छा लेवल बना हुआ है 255, एक सेफ हमारे पास एंट्री है, ये सेफ स्टॉप लॉस है। तो सपोर्ट के हिसाब से आप काम कीजिए, इसमें आपको मतलब बहुत हाई चांस है कि वो प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक देखो, इसने थोड़ा सा यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे जब एक स्टॉक ऐसे गिर रहा था ना, तो ये थोड़ा सा 2-3 दिन ये गिरा हुआ है स्टॉक, 2-4 दिन स्टॉक, 4-5 दिन स्टॉक नीचे ही समझो, हम कहेंगे कि इसमें रेड कैंडल बनते जा रहे हैं, ठीक है। समझो एक वीक के लिए इसने थोड़ा सा ऐसे दिया, लेकिन उसके बाद फिर से इसने अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद स्टॉक यहाँ जाके, तो ये वो बड़ा कैंडल में बोल रहा था कि बड़ा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अब ये स्टॉक जो है 80 के ऊपर यहाँ से चला गया होगा 300 के आसपास। तो अभी भी कोई अगर इसमें एंट्री करना चाहता है विप्रो में, एक मिनट, आई थिंक अगर इस लेवल को हम 300 के लेवल को स्टॉप लॉस है, कोई इतना बड़ा जो इतनी कोई अगर वो कर सकता है कि अगर इसका स्टॉप लॉस आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 24-25 रुपीज़ स्टॉप लॉस आ रहा है, तो अगर हम इतना स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं तो स्टॉक में अभी भी बने रह सकते हैं हम। एक बार मैं इसको आवली चार्ट में दिखाऊंगा कि आवली चार्ट पे थोड़ा सा क्लोजर लेवल ये दिखाएगा। ये देखिए आवली चार्ट में ये एक बार थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं आवली चार्ट में भी स्टॉक जो है, एक मिनट इस एक को मैं हटा देता हूँ दोस्तों, खाली RSI को ही रख लेते हैं हम, ओके। तो ये आप देख सकते हो कि ये स्टॉक एक बार यहाँ गैप अप हुआ है, लेकिन देखो इसने RSI को आवली चार्ट में ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। हम इसके पिछले लेवल पे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम इस पे अभी भी बने रह सकते हैं कि इस तरीके से आप काम कीजिए, पिछले लेवल को एज अ सपोर्ट लेवल के हिसाब से आप कभी भी काम करेंगे ना, तो आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको स्टॉक में प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ यहाँ पे एक बार इसने जो है एक फॉल्स सिग्नल जनरेट किया हुआ है, देखो स्टॉक ज़्यादा गिरा ही नहीं है, एक फॉल्स सिग्नल से जनरेट किया है और उसके ऊपर फिर से स्टॉक ऊपर चला है। हाँ यहाँ पे हमारा निकलना, लेकिन हमें जब भी कोई चीज़ फॉलो करनी है प्रॉपर, मैं कह रहा हूँ कि पिछले लेवल को देख के उसके हिसाब से आप काम कीजिए, पिछले लेवल को देख के सपोर्ट लेवल को समझ के वहां से हमको स्टॉप लॉस लगा के हमें उस लेवल के हिसाब से, अगर वो तोड़ता है स्टॉप लॉस को, पिछला लेवल तोड़ता है स्टॉक, तो हमें निकलना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा हम कहाँ से एंट्री ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे मैं आपको ये लेवल दिखाता हूँ, सपोज हमने इस रेंज में बाइंग किया, हमारा स्टॉप लॉस ये देखो पिछला लेवल है, ये लेवल हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, मान लो इधर स्टॉप लॉस रखा है, तो ये देखो यहाँ से स्टॉक कितना अपवर्ड मूव किया है। अगर हम यहाँ पे इस रेंज में कहीं पर भी हम एंट्री कर लेते हैं, मान लो 260 के आसपास हमने एंट्री कर ली है, पिछला लेवल 256, 50 आ रहा समवेयर, 50 के पास अगर हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं, मान लो 50, 55, हाँ हमने 60 के आसपास बाई किया, और हमारा यहाँ पे बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, ये आवली चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछले लेवल को 255 जो मैंने कहा 255 या 50 पे हम क्या कर लेंगे, स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। हमने 250 के आसपास, यस 250, 55 आ रहा है वैसे ये अप्रॉक्सीमेटली 55, तो अगर हमने 55 के ऊपर स्टॉप लॉस है तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल कम है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि किसी किसी लेवल पे बहुत अच्छा मूवमेंट कभी स्टॉक्स में आता है। तो ये देखिए इसके बाद ये स्टॉक में कैसा अच्छा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से एंट्री करी है, राइट, तो एक बार जब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल बोला तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, श्योरली हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, इस लेवल पे कहीं पे हम एग्जिट करके निकल जाएंगे स्टॉक में से। या अगर मान लो हमने इधर भी कहीं पे एग्जिट किया है सपोज, तो भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मान लो, तो एक बार आप ये चीज़ देख लीजिए, अगर स्टॉक में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप एक बार वहाँ से ज़रूर एग्जिट कीजिए। हाँ ये देखो एक किस्म का ये भी हम फॉल्स सिग्नल ही बोलेंगे, क्योंकि स्टॉक ये थोड़ा सा गिरा है लेकिन उसके बियॉन्ड वो गया है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से ऊपर आया, यहाँ से फिर से बाई सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन हमें किसी पिछले लेवल के हिसाब से हम इसको प्रॉपर ट्रैक कर लेंगे। हम देखो इसको एक काम और कर सकते थे कि हम इसको जैसे 55 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है, हम एक बार इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी स्टॉप लॉस को मान के चलेंगे, या थोड़ा सा ऊपर हल्का सा भी,
मान लो 65 हमने लगा लिया, 4-5 रुपये भी हमने थोड़ा सा ऊपर रख लिया, वैसे इसने यहाँ पे वो एक बार ब्रेक है। तो कभी कभी हो सकता है कि इंट्राडे बेसिस पे आपको कभी दिखाई दे कि स्टॉक जो है उसने कोई उसमें गिरावट है, लेकिन आप इसको देखो जैसे यहाँ पे गिरा ना एक कैंडल फर्स्ट आवर में ये गिरा, लेकिन उसके बाद फिर से स्टेबल हो गया, फिर से स्टॉक ऊपर ही रहा, तो हम इसमें बने रह सकते हैं। पिछले लेवल के हिसाब से हम एंट्री के आसपास थोड़ा सा ऊपर लेके हम इस पर बने रह सकते थे, या एक बार हम यहाँ से निकल जाते हैं इस लेवल पे, हम कहीं यहाँ पे निकल जाते हैं कहीं पर, चाहे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी होता, मान लो 5-10 रुपये भी, अगर मैं 5 रुपये भी कहीं प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो निकलने को बोल रहा तो हम उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद स्टॉक में यहाँ से फिर से एंट्री हुई है। ठीक है, एक मिनट, स्टॉक में फिर से यहाँ से एंट्री हुई है। अब हम इस लेवल को, ये लेवल को हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 65-67 को हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं, या मान लो हम इस लेवल को भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 270 को हमने एंट्री सपोज यहाँ पे कर ली है, सपोज हमने कहीं 80 के पास एंट्री करी है और हमने स्टॉप लॉस रख लिया है 270 के पास। तो यहाँ से ये स्टॉक देखो फिर से इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया है, इसमें यहाँ से फिर से एक फॉल्स सिग्नल हुआ है दोस्तों, फॉल्स सुपर ट्रेंड, कभी कभी सुपर ट्रेंड कभी कभी फॉल्स सिग्नल भी देगा। ठीक है, अगर छोटा मोटा फॉल है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और हम पिछले लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस को मेंटेन करके उसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये स्टॉक कितना वहां से ऊपर चल पड़ा। ठीक है, यहां तक पहुंच गया, 325 के पास पहुंच चुका है। तो ऐसे करके हम इसको ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं कोई और स्टॉक आपको दिखाऊंगा, फ्रेंड्स। वो मैंने आपको अभी बताया ना, जैसे देखो जैसे मैंने आपको अभी भी दिखाया कि वो स्टॉक में जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, कैंडल का साइज छोटा आ रहा है। देखो मैं वही बता रहा था आपको, ये फॉल्स हो गया। मतलब एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखाऊंगा। देखो जब कोई छोटी मोटी कैंडल है ना, मतलब उसको आप अवॉइड कर सकते हो। एक मिनट, और आप पिछले लेवल पे आप क्या कर सकते हो, आप पिछले लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन करके देखो। जैसे ये लाइन है ना, ये आरएसआई की खुद की लाइन जो है वो एक स्टॉप लॉस का लेवल है। ठीक है, मान लो आपने 275 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसने वो लेवल नहीं तोड़ा आपने, इसने अपना वो लेवल आरएसआई सॉरी सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल आया हुआ है, लेकिन ये स्टॉक में बहुत छोटे छोटे कैंडल्स आए हुए हैं और उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर ही गया। तो यहाँ पे मतलब चाहे थोड़ा सा इसमें, सर साइज बता रहा हूँ ना, साइज बता रहा हूँ, कैंडल का साइज बता रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ आप पिछले लेवल को आप अपने, अगर मान लो मैं यहाँ आपने एक लेवल पे, मैं कह रहा हूँ लेवल टू लेवल चलना, आपको लेवल टू लेवल, आपको सपोर्ट लेवल का काम करना है, सपोर्ट के हिसाब से काम करना है। ठीक है, सपोर्ट में कह रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये लेवल एक एस्टैब्लिश लेवल है। ठीक है, स्टॉक काफी लॉन्ग टाइम तक यहाँ रहा है, ये देखो कितनी कैंडल्स है, तो ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो हम इस लेवल को सपोर्ट के हिसाब से हम इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 275 लेवल या 274 लेवल हमने मार्क कर लिया एज आवर स्टॉप लॉस, क्योंकि वहां पे सपोर्ट है सर, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये लेवल पे हम रख लेते कि हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया 274। अब आप देखिए हमें ऐसे काम कर रहा हूँ ना, वही तो आपको मैं समझा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट के हिसाब से आप काम कीजिए। और ये देखिए जब इसने सपोर्ट तोड़ा ही नहीं है, यहाँ पे सिग्नल आया हुआ है सेल सिग्नल। ठीक है, और ये कैंडल छोटे बन रहे हैं, कैंडल देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं। पिछला जो मैंने बताया था वो बड़ा कैंडल था, वहां पे हमें जो है निकलना एक बार जरूरी था, क्योंकि लेकिन अगर हम उसके पीछे अगर हमने सपोर्ट के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस रखा है, तो हमें एक बार जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है हम स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा कभी कभी हमारा हो सकता है कि हमारा जो है स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, वो भी कभी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगी, कई बार स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन हमें स्टॉप लॉस देखो, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ हमेशा समझनी होगी, इफ देर इज नो रिस्क देर इज नो रिवॉर्ड। आप किसी भी चीज़ में कोई भी आप काम करो, कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करोगे तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आपको शॉप चलानी, कोई आप शोरूम खोलते हो, कोई भी किसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसको आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपका जो सेल ही ना हो उसकी, या जिस प्राइस पे आपने जो माल लिया खरीदा है, हो सकता है वो उस रेट उससे आपको सस्ता ही बेचना पड़े, हल्का फुल्का। ठीक है, कभी कभी होता है बिजनेस नहीं चल रहा, आपको वो बिजनेस सेल करना पड़ सकता है। तो यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका एक रिस्क है,
आपने पैसा लगाया है, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप काम करोगे तो उसमें तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, रिस्क के बिना रिवार्ड कैसे आएगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आप खाली आप बोलोगे कि आप रिस्क भी नहीं लो रिवार्ड आपको रिवार्ड पे रिवार्ड मिले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। तो रिवार्ड लेने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो हमें लेकिन हमें हमारा जो रिस्क है, हमें एक कैलकुलेटर रिस्क लेना है कि हमने अगर पैसा बनाना है मार्केट से, हम एक इस्टेब्लिश लेवल को, जैसे मैंने कहा कि ये लेवल इस्टेब्लिश है, सुपर ट्रेंड ने भी बताया कि ये लेवल इस्टेब्लिश स्टॉप लॉस बन रहा है। क्योंकि देखो ये ग्रीन लाइन जो सुपर ट्रेंड की वो एक खुद में एक स्टॉप लॉस का लाइन होती है, ये खुद की स्टॉप लॉस की। इवन ये लेवल आप देख लो, इसने ये लेवल भी नहीं तोड़ा, यहाँ पे सुपर ट्रेंड का सेल सिग्नल आया हुआ है, लेकिन ये जो लेवल है इमीडिएट लेवल, ये लेवल भी इसने ब्रेक नहीं किया। 275.91 जो आ रहा है, ये लेवल भी ब्रेक नहीं किया इसने। जब ये ब्रेक नहीं किया तो हम इसमें बने रह सकते हैं, हमें क्यों एग्जिट करना है यहाँ से, हम एग्जिट नहीं करेंगे इसमें से। चाहे वो गिर रहा है, स्टॉक एक बार ऊपर गया है 285 के पास, ठीक है ओके। तो अगर हम छोटे मोटे प्रॉफिट से सेटिस्फाइड है, लेकिन हमें वो काम नहीं करना, हमें हमेशा डिसिप्लिन से काम करना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है स्टॉक कहाँ जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे 5-10 रुपए के निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम निकल गए, ठीक है, स्टॉक यहाँ आया और फिर से यहाँ से ऊपर हो गया, तो नेक्स्ट टाइम ये 85 से अब कितना हाई चला गया है, अब इस टाइम 95 चला गया स्टॉक। तो हम बोलेंगे यार यहाँ पे हमें 10 रुपये प्रॉफिट मिले, यहाँ पे 20 रुपये मिलने थे। तो यहाँ पे हम कभी ऐसे वैसे हम इस प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से हम उसको ट्रैक करके उसमें बने रहेंगे, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि फॉल सिग्नल है, क्योंकि देखो स्टॉक जहाँ से इसने सेल दिया ना उस लेवल से तो नीचे आया नहीं स्टॉक ना, थोड़ा हल्का सा ही नीचे आया ना। हाँ यहाँ पे ये 2-4 घंटे के लिए यहाँ पर हो सकता है, एक दिन के लिए 1 मिनट के लिए। हाँ ये देखो 16 को ऐसा हुआ है और 20 को मेरी बीच में छुट्टी थी, ओके। तो ये स्टॉक यहाँ पे 3-4 घंटे के लिए यहीं पर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो कैंडल का साइज देखो, छोटे कैंडल है, और फिर से ये स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब इस बार इसने नया हाई बना लिया 85 की जगह, अब ये बना लिया 293 बना लिया, 293.94 हाई बना लिया, ठीक है ओके। तो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना लेवल टू लेवल, और स्टॉक में जो प्रॉफिट आता जा रहा है उसको लॉक करते, मतलब कि आपने ये समझना कि इस लेवल पे आएगा मैंने एग्जिट करना है, लेवल देख के। लेकिन प्रॉपर लेवल वाइज हम काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है सर। अमित सर समझ आ गई बात आपको। कभी कभी सुपर ट्रेंड भी फॉल्स सिग्नल देता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% रिलायबल नहीं है। आपको वहाँ पे बहुत सी, मैंने कहा हम जो टॉपिक कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट लेवल एक ऐसी चीज़ है, सपोर्ट मतलब एक समझो दीवार है, ठीक है। अगर वो दीवार टूटेगी तो हमें फिर उस दीवार मतलब कि वहाँ से हमें निकल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक हमारी दीवार नहीं टूटी तो हम क्यों उसमें से निकलेंगे, ठीक है। हम तो नहीं इसमें विश्वास कर लेंगे, सुपर ट्रेंड ने बोल दिया सेल तो हम फटाफट सेल कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने एक दीवार लगाई है, जब तक हमारी दीवार नहीं टूटती, हमारी दीवार है 274 के पास, 275 के पास, तो हमने अगर एंट्री करी है 1 मिनट में एंट्री कहाँ में हमने की थी, हाँ हमारी एंट्री कहीं यहीं पर हुई थी एक्चुअली। देखो हमारी एंट्री कहीं यहीं पे हुई थी, हमने कहीं एंट्री इस लेवल में की थी। मान लो हमने इस कैंडल पे इधर से कहीं से एंट्री की हुई है, सपोज हमने 275 पे एंट्री की है, हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट स्टॉप लॉस आ रहा था इस लेवल पे 270 पे, तो 270 पे हम स्टॉप लॉस लगा के बने रहेंगे। देखो 270 कहीं आया नहीं, 275 के बाद आया नहीं वो लेवल अभी तक, तो हम क्यों निकलेंगे उसमें से, ठीक है। जब ये गिर रहा है हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले सकते हैं। देखो जिसमें 275 पे एंट्री है, हम इस कॉस्ट टू कॉस्ट ले लेंगे। हम ये बोलेंगे कि अगर वही 275 के सॉरी 275 पे हमारी अगर एंट्री है तो हम ये अपना डिसाइड कर लेंगे अगर 275 आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड ने सेल बोला है। सुपर ट्रेंड जब सेल बोलता है तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि अगर वो उस लेवल को तोड़ देगा तो हम उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन इसने 275 के लेवल ब्रेक नहीं किया तो हमने एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने एक बड़ा प्रॉफिट लेना है, ठीक है। बड़े प्रॉफिट लेने के लिए हमें थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेंगे तो ही रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे हम रिस्क भी नहीं लें और रिवार्ड हमें मिले, तो ऐसा कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ अदरवाइज ये स्टॉक जो है ये मतलब इसमें क्या है, मतलब कि एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। और हमारा देखो जैसे हमने सबसे पहले स्टॉक सेलेक्ट कहाँ से करना है, स्टॉक सिलेक्शन करनी है क्या बोलते हैं इसको,
ये जो मैंने स्क्रीनर आपको बताया, अब इस स्क्रीनर में सिर्फ 4 स्टॉक्स क्या हुए हैं, निकल के आ रहे हैं। तो हमें इस स्टॉक में देखना पड़ेगा कि हम इसको एंट्री कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन हमें पिछले लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसे मैंने कौन सा खोला है, विप्रो का ना, हाँ तो विप्रो का अभी अब आप इस पे अब मैं बिल्कुल लेटेस्ट लेवल पे जाऊंगा, अभी भी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। 1 मिनट, देखो जैसे ये स्टॉक यहाँ पे, तो हम इसको 324 आ रहा है, 324 आ रहा है। तो देखो जैसे एक लेवल स्टैब्लिश कहाँ पे हो रहा है, एक बड़ा लेवल स्टैब्लिश हो रहा है इस लेवल पे, या हम इस लेवल को भी ले सकते हैं, इस लेवल को भी ले सकते हैं। हम 215 के लेवल को भी हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा सकते हैं, थोड़ा कोई लेवल देख के जहाँ से स्टॉक में कोई देखो जैसे ये लेवल है, ठीक है, हम इस लेवल को भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 214 का आप स्टॉप लॉस लेके अभी भी हम 324 पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 24, 25, 30 में भी हम एंट्री कर सकते हैं, और हमें हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएटली यहाँ होना चाहिए। तो कुछ 10 रुपये का हम यहाँ पे मान लो रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये का रिस्क, तो आप रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, इस लेवल को स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, वहाँ से स्टॉक ने अच्छा मूव दिखाया है, ठीक है। तो हम अभी भी स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको और स्टॉक बताऊंगा, वो है जैसे सोलर इंफ्रा, मैंने पहले आप पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन देख लेते हैं, एक बार हम चार्टिंग साइड पे देख लेते हैं। हेलो सर, जी सर, बोलिए। हाँ सर, हाँ वहां पे कैंडल का कलर देखना पड़ेगा सर, कैंडल का देखो एक बार मुझे देखने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने कैंडल्स देखनी है सर, कैंडल्स एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे पॉलीप्लेक्स है ना, देखो पॉलीप्लेक्स ने भी बड़ा अच्छा है, देखो इस लेवल के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूवमेंट दे दिया है। और ये जो इचिमोकू है ना, इचिमोकू का ये जो जब स्टॉक मतलब ये चीज इसको सपोर्ट में आती है, देखो जैसे ये स्टॉक ऊपर था ना, ये चीज ऊपर थी, जब चार्ट नीचे है और वो इंडिकेटर ऊपर है, तो ये अभी इसका एक सेल का सिग्नल है, मतलब तो इस लेवल पे ये सेल बनता था, कहीं यहाँ पे आया स्टॉक, ठीक है। यहाँ से देखो इसकी जो लोअर लाइन है, इसकी जो अपनी इंडिकेटर की लाइन है, इस लाइन का इसने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से फिर से एक किस्म का एंट्री इसने दी है, ठीक है, ओके। और फिर से थोड़ा लेकिन ऐसे है, तो आप ये जो इसकी मेन है ना, ये देखो इस लेवल पे एक स्टैब्लिश लेवल बन चुकी है, ये डेली चार्ट पे है। सो जब ये डेली चार्ट पे इस लेवल को ब्रेक करके, एक बार मैं लाइन को दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जैसे इस लेवल के ऊपर हम खरीद सकते थे स्टॉक को, इस लेवल के ऊपर हम इसके एंट्री ले लेंगे, क्योंकि एक किस्म का ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये डेली चार्ट पे हम इस कैंडल पे नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री कर लेते, अगर मान लो हम इस लेवल पे भी एंट्री कर लेते हैं, ये लेवल 5 आई थिंक ये 544 है, कितना एक बार देख लेता हूँ कितना लेवल आ रहा है ये, हाँ समथिंग कोई 544 के दिखा रहा है आई थिंक ये। तो इस कैंडल पे हम एंट्री कर लेते सर, क्योंकि देखो ये पिछले लेवल को ब्रेक करके, और ये देखो इचिमोकू की सपोर्ट आ चुकी है, ये चार्ट के नीचे आ गया, तो ये खुद में ही एक इंडिकेशन है कि अब ये ऊपर जा सकते हो। वैसे इसने सिग्नल यहीं से दिया है, ठीक है, और इसके बाद अभी स्टॉक ये इतना दूर चला गया। तो ये जो जितने भी स्टॉक्स में दिखा रहा हूँ ना, जो ये मैंने स्कैनर बनाया हुआ है, इस स्कैनर के हिसाब से आप काफ़ी अच्छा इसमें कोई स्टॉक्स में एक बड़ा मूवमेंट पकड़ सकते हैं। तो मैं पॉलीप्लेक्स ढूंढता हूँ अभी investing.com में, पॉलीप्लेक्स में सर्च करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है। ये आ गया सर। तो देखिए जैसे अभी ये स्टॉक आज तो क्लोज हो चुका है, ठीक है, आज क्लोज हो चुका है। देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, ये आप देखो स्टॉक स्टेप्स की फॉर्म में ऊपर चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। एक स्टेप ये है, ये चीज आप समझिए, एक वन स्टेप, देन स्टॉक ने ऊपर जंप किया, दूसरा स्टेप लिया, थोड़ा सा इस रेंज में रहा, फिर स्टॉक ने ऊपर जंप किया, एक और स्टेप ले लिया, ठीक है, फिर स्टॉक इसी रेंज में कुछ रहा, देखो ये लेवल इसने तोड़ा नहीं, लेकिन ये पिछला लेवल ब्रेक नहीं किया, फिर एक अलग स्टेप लिया, ये स्टेप इस स्टेप के ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हम कह सकते हैं हल्का सा ऊपर है, ठीक है। फिर से इसने एक समझो एक स्टेप लिया, तो अभी इस लेवल पे, ठीक है,
अब आप इस स्टॉक को यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हो। हमारा ये जो इमीडिएट लेवल है ना, ये वाला लेवल है सर, ये लेवल पे हम स्टॉप लॉस रख के हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये लेवल निकल के आ रहा है 595 का हम स्टॉप लॉस, नहीं सॉरी ये बड़ा लेवल आ रहा है, सॉरी मैं आवली चार्ट देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ, ओके ये मैं आवली चार्ट ही देख रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बड़ा लेवल आ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दूंगा। देखो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारा अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, कितना लेवल है 636 है, तो 636 630 से 40 के लेवल अगर हमें मिल जाता है, हम इसको एंट्री कर लेंगे और हम इमीडिएट लेवल को ना, पिछला जो इमीडिएट देखो ये कैंडल है, ठीक है, इमीडिएट कैंडल का लेवल, या हम इस लेवल को, ये वाला लेवल है जो ये अच्छा लेवल है, क्योंकि देखो यहाँ पे सुपर टेन की लाइन भी है वहाँ पे। तो हम इस लेवल पे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये कितना लेवल निकल के आ रहा है, ये 612 10 12 आ रहा था, यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा निकल के आ रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा निकल के आ रहा है। तो हम इस पे या तो हम देख सकते हैं कि क्या पता ये कल के लेवल, हम इसको कल चेक करेंगे कि क्या पता स्टॉक थोड़ा सा अगर नीचे आता है हल्का सा कहीं पर भी, यानी कि ये स्टॉक कहीं पर भी हमें इस लेवल तक मिल जाता है, कहीं पर 20 लेवल तक अगर ये आता है तो हम उस पर एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, या थोड़ा सा हल्का सा नीचे, यानी कि 608 के पास हम इसका स्टॉप लॉस लेके, ठीक है, ये लेवल के नीचे बोल रहा हूँ, इस लेवल के नीचे, क्योंकि देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड की लाइन भी है, तो सुपर ट्रेंड की लाइन खुद में एक स्टॉप लॉस की लाइन का काम करती है। सुपर ट्रेंड की जो लाइन होती है ना, ये लाइन हमेशा स्टॉप लॉस का काम करती है, ठीक है, राइट। तो हमें थोड़ा सा नीचे रख के उसका हल्का सा, मतलब 1 पॉइंट नीचे, देखो जैसे ये लेवल निकल के आ रहा है, कितना है, सुपर ट्रेंड की लाइन जो बता रही है 611.69 बता रही है, ठीक है। हम इसको 610 के पास रख के हम इसमें इस स्टॉक में कहीं पर भी अगर मैं एंट्री मिलती है क्लोज टू 620 तक, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि नीचे आएगा, लेकिन अगर आएगा तो हम इसमें एंट्री ले, हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इसको एंट्री कर लेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो ऐसे करके हम इसमें एंट्री करके इसमें बने रहेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही सर। सबसे बड़ी बात है आपको सही स्टॉक्स मिल रहे हैं सर। ये जो स्टॉक्स है ना, जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूं, ये वो स्टॉक्स है जिसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि तभी ये 80 के ऊपर है, क्योंकि RSI 80 का मैंने रखा, और ये इनका जो वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम रखा कि 1 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है। वैसे अगर हम इसको छोटे वॉल्यूम में देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे हमें। मैंने 1 लाख का वॉल्यूम रखा क्योंकि किसी स्टॉक में इतना बड़ा वॉल्यूम अगर है, 1 लाख का वॉल्यूम है, तो वो स्टॉक ईजिली नहीं गिरेगा। और देखो हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा, देखो जैसे ये छोटा सा स्टॉक है 7.5 रुपीज़, तो ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्मॉल कैप स्टॉक होगा तो ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में कभी रिस्क हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हमें इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना ना, इसको हम ऐसा करेंगे कि मान लो हमें 7 रुपये का स्टॉक एक शेयर मिल रहा है, तो हम कोई छोटा सा अमाउंट, हमें जो लगता है कि जो अमाउंट हमें मतलब अगर लॉस भी होगा तो डजेंट मैटर, मान लो हम इसके कोई एक 1000 रुपये अगर इसके ऊपर लगा लेते हैं, 7 रुपये का शेयर है, ठीक है, 7-8 रुपये का शेयर है, ठीक है, और ये भी इस लेवल पे आया है, इसमें कितना वॉल्यूम, देखो इसमें कितना वॉल्यूम है, 2,68,000 का वॉल्यूम है इसमें, और आज ये अपर सर्किट्स के पास आसपास हुआ है, ठीक है, 4.90, ठीक है, यानी कि 5% के पास ये, एक बार मैं इसको चार्ट खोल के देखता हूँ। तो हम इसमें ऐसे स्टॉक्स में, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, इन स्टॉक्स में जब भी ट्रेड करना हो तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमें अगर हमारा मान लो छोटा सा लॉस भी होगा, डजेंट मैटर, क्योंकि ये स्टॉक्स कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि इनको हम बोलते हैं पैनी स्टॉक्स। 10 रुपये से जो नीचे स्टॉक है वो पैनी स्टॉक है। अब पैनी स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स में कभी इन्वेस्टमेंट बल्कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो इसको ऐसे करना चाहिए कि भाई अगर मान लो हम छोटा सा रिस्क लेंगे, अगर वो मान लो 500 रुपये लगा लिया, ठीक है, अगर वो चला गया तो डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो स्टॉक आपको 500 का, हो सकता है वो 5000 दे दे, क्योंकि इन स्टॉक्स में पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने जो छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, इनका ये हाई रिस्क और हाई रिवार्ड स्टॉक होते हैं, क्योंकि जिसमें जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे रिवार्ड भी ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें कभी भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए आप, क्योंकि ये स्टॉक्स रिस्की बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉक्स जो हैं ये नीचे ही गिरते हैं, इनके लॉस देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको करना हो, आप इसमें थोड़ा सा अमाउंट लेके, छोटा सा अमाउंट लेके आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। देखो इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, कुछ दिन से अपर सर्किट, ये देखो ये ना, ये जो लाइंस है, डॉट्स है, ये अपर सर्किट है, गैप्स में ऊपर जा रहा है। लेकिन हाँ, अपर सर्किट के बाद देखो एक बड़ा सा फॉल भी है, फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर अपर सर्किट, फिर से नीचे। लेकिन देखो डेली बेसिस पे ये
नीचे गिरा, लेकिन अभी भी ये स्टॉक ऊपर गया, 7.5 के ऊपर गया है। एक बार ये दिन में 6.8 के पास भी आया है। आज का चार्ट है ये, ठीक है। एक बार ये दिन में 6.8 के पास आया है और क्लोजिंग दी है 7.5 की। अब इसको मैं investing.com में देख लेते एक बार। वैसे ऐसे स्टॉक्स में मैं जनरली अवॉइड करना चाहिए। हमें नॉर्मली एक स्टॉक जो है, मतलब कम से कम भी हमारा स्टॉक जो हम ले रहे हैं वो 50 रुपए के आसपास उसके ऊपर मिल जाए तो वो सेफ रहता है, अच्छा रहता है, मतलब ठीक है। यानी कि जनरली 10-20 रुपए के स्टॉक्स काफ़ी रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि पैनी स्टॉक 10 रुपए से नीचे जो स्टॉक है वो पैनी स्टॉक है। और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल भी बताऊंगा कि हमारा जो है ना मार्केट कैप हमें देखना चाहिए स्टॉक का, कि इस स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो कम से कम 250 लाख होना चाहिए। मिनिमम कैपिटल जो है उसका 250 लाख होना चाहिए। अगर स्टॉक का कैपिटल इतना नहीं है, मार्केट कैप 250 लाख से कम है, तो हम उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल पॉइंट है कि हमें उसका मार्केट कैप भी देखना होगा, क्योंकि वो अगर ऐसा स्टॉक होगा छोटा सा जिसका मार्केट कैप बहुत कम है तो वो रिस्की हो सकता है। अब मार्केट कैप देखने के लिए मैं इस स्टॉक को एक बार गूगल सर्च करूंगा कि इसका मार्केट कैप कितना है। नाम क्या है, मंधना इंडस्ट्रीज। ओके, एक बार हम देख लेते हैं मंधना इंडस्ट्रीज को, कि मंधना इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कितना है। हम इसको टाइप करेंगे मंधना इंडस्ट्री, प्राइस हम कर लेते हैं मंधना इंडस्ट्रीज प्राइस, हाँ शेयर प्राइस। इसमें हम क्लिक करेंगे मंधना इंडस्ट्री शेयर प्राइस हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो इसके डिटेल्स में हम जाएंगे तो हमें इसका मिल जाएगा कि कितना का स्टॉक है ये, ठीक है। इसका मार्केट कैप क्या है, हम इसको स्टडी कर लेंगे मनी कंट्रोल पे। हमें इसका क्या मिलेगा, हमें इसका पूरा मार्केट कैप पता चल जाएगा। आई थिंक यहाँ पर भी दिख रहा है, हाँ यहाँ पर भी था, सॉरी इसमें हमें, चलो एक बार देख लेते हैं, इसमें भी दिख रहा था आई थिंक। एक बार हम इसको मनी कंट्रोल की साइड पे हम देख लेंगे, किसी साइड पे हम इसकी शेयर प्राइस करके लिखेंगे तो उसकी प्राइस वो बताएगा हमको। सॉरी, मार्केट कैप इसका देखो, ये स्टॉक बहुत छोटा है, 24 करोड़ का सिर्फ। तो ऐसे स्टॉक्स में कभी भी ट्रेड मत कीजिए। कम से कम जो मार्केट कैप एक सेफ स्टॉक का 250 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 250 करोड़। तो ये पॉइंट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है। पैनी स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट करना है बहुत हाईली रिस्की है, मतलब उसके 90% चांसेस हैं कि वो लॉस में देगा, लॉस ही जा सकता है उसका, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है। देखो मार्केट कैप इसका सिर्फ 24 करोड़ है, 24.01 करोड़ है, जो कि बिल्कुल स्मॉल अमाउंट है, कुछ भी नहीं हो, ठीक है। एक अच्छा स्टॉक वो होगा जिसका कम से कम जो है 250 करोड़ के ऊपर जो है उसका मार्केट कैप होना चाहिए। चाहे ये स्टॉक कितना भी अच्छा कर रहा होगा, लेकिन इसका मार्केट कैप बिल्कुल कम है, इससे हमें दूर रहना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है, इसमें कुछ भी, इसको कोई भी प्रमोटर जो है, लेकिन हाँ देखो इसका जो यहाँ पे एक सेंटीमीटर बता रहा है, सेंटीमीटर जो इसका बता रहा है, मतलब सेंटीमीटर है ये बता रहा है कि 80% लोग यहाँ पे बाई, क्योंकि देखो ये स्टॉक मैंने आपको जैसे मेरे स्क्रीनर में ये हुआ है, स्क्रीनर में फर्स्ट 4 में, सॉरी मतलब कि आउट ऑफ दिस 4 में ये भी आ रहा है स्टॉक, यानी कि इसमें बायर इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत कम है। तो ये स्टॉक कभी भी जो है लोअर सर्किट्स में जा सकता है और हमारा लॉस हो सकता है इसमें। तो ऐसे स्टॉक से हमेशा हमें दूर रहना, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही दोस्तों, ये बात समझ आ रही सर? क्योंकि ये बहुत किसमें यहां पर उसमें कई बार स्टॉक हो सकता है करना, वैसे मैं करके देखूंगा, एक बार मॉडिफाई करके देखूंगा इसको। चलो अब देख लेते हैं, एक बार देखते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं। हाँ कर तो सकते हैं, एक बार लगा के देखते हैं सर। मार्केट कैप का इसमें अगर ऑप्शन है
ठीक है, आपने बताया, ठीक पॉइंट है आपका। मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि अब मार्केट कैप का कोई ऑप्शन आ रहा है इसमें क्या, देख लेते हैं एक बार। अगर ऐसा है तो हम उसको लगा के और भी हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। मार्केट कैप नेट वर्थ करके आ रहा है, नेट वर्थ में सर्च, हाँ हाँ नेट हाँ मार्केट कैप आ गया सर, मार्केट कैप आ गया है। हाँ ये हम ऐसा कर सकते हैं, इसका मार्केट कैप जो है रख सकते हैं ये वाला रख लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़। ये मिनिमम होना चाहिए, जो एक्चुअली 500 करोड़ होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 250 करोड़ भी होगा तो हम कोई छोटे स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो इसको हम इतने जीरो लगाएंगे। एक मिनट, एक और जीरो लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा आ गया है, हम इसको अब रन करके देखते हैं। कई बार ये चीज़ें काम नहीं करती, स्कैनर काम नहीं कर पाएगा। ये देखो नहीं आ रहा, ये कभी ये पता है, ये चीज़ हम जब लगा, एक मिनट देख लेते हैं, कुछ चेंजेस करके देख लेता हूँ, क्योंकि इससे स्कैनर हो सकता है काम नहीं करेगा ना फिर, क्योंकि स्कैनर का थोड़ा सा अपना तरीका है काम करने का। हाँ थोड़ा सा कम करके देखते हैं क्या क्या दिखाता है। थोड़ा सा आपका जो आपका आइडिया है मुझे भी ठीक लगा है, लेकिन ये चीज़ जो है नहीं बता रहा ये सही से। ट्राई करना पड़ेगा कि मॉडिफाई अगर होगा तो मैं करूँगा ऐसा, ठीक है, कि कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए। एक बार मैं एक ज़ीरो और कम करके देखता हूँ। इसमें देखो विप्रो आया, लेकिन अभी तक सिर्फ विप्रो आया है। थोड़ा सा कुछ और भी लगा के देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखो नहीं आ रहा, नहीं मतलब इससे कुछ और अलग से वो हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ मतलब इसमें काम नहीं करेगी। ये एक बार करते हैं 250 कर लेते हैं, क्या पता ये सीधा सीधा मार्केट कैप करोड़ के हिसाब से दिखा रहा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। 250 मैंने कर दिया, यस 250 मतलब सीधे सीधा करोड़ के हिसाब से, यहाँ पे ये खुद मतलब करोड़ के हिसाब से कैपिटल बता रहा होगा। ये जो मार्केट कैप बता रहा होगा करोड़ के हिसाब से बता रहा होगा। 250 करके देखो ये आ गया, तो वो वाला स्टॉक यहाँ से हट चुका है। देखो 3 स्टॉक सारे आ गए। हाँ ये ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ इसको 500 करके देखता हूँ कि 500 में भी दिखा रहा है क्या, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 500 है अदर स्टॉक्स के लिए। लेकिन पेनी स्टॉक्स अगर कोई है, छोटे स्टॉक्स जो जिनका जो 20, 30, 50 रुपए के स्टॉक्स हैं, उनके लिए कम से कम 250 करोड़ उनके लिए भी होना चाहिए। यस आ रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो हम इसको चलिए, हाँ यस ठीक है, काम कर रहा फंक्शन, क्योंकि मैंने जीरो लगाए थे, मैंने करोड़ काउंटिंग में करोड़ डाला था, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें, 250 लिखना बस, क्योंकि ये करोड़ के हिसाब से खुद बता रहा होगा, ठीक है। तो 250 लगा दिया, ओके। और ये स्टॉक हमारे स्कैन होके आ रहे हैं। आप देखो 4 में से 3 स्टॉक, क्योंकि देखो वो एक स्टॉक तो सिर्फ 24 करोड़ का है, तो वो स्टॉक यहाँ पे रहा ही नहीं। तो इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपने एक अच्छा आइडिया दिया और ये मुझे मतलब सही लग गया। और हमारा, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते नहीं, कई बार ये कभी इस तरीके से मतलब ध्यान में नहीं रखा है, लेकिन आपके माइंड में आया तो ये चीज़ सही स्ट्राइक हुई और हमारा काम भी बन गया, मतलब ठीक है। देखो अब वो स्टॉक हमारा हट चुका है, तो हमें वो, हम उन स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में नहीं फंसेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास 3 स्टॉक्स रह चुके हैं, कौन सा, एक सोरेल इंफ्रा, ठीक है, विप्रो और पॉलीप्लेक्स, ये 3 हमारे कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब इन तीनों में कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा हम उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। पॉलीप्लेक्स का मैंने पहले किया था, किसका किया था, हाँ पॉलीप्लेक्स का। तो पॉलीप्लेक्स थोड़ा सा दूर है वैसे, ठीक है, यानी कि हम इस लेवल को, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए इसका, जो एक्चुअली देखो ये सुपर ट्रेंड की खुद की लाइन है ना, जो
सुपर ट्रेंड की खुद की लाइन एक स्टॉप लॉस का काम करती है, तो हम इस लेवल के पास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर आ रहा है ना, ये दूर आ रहा है स्टॉक, तो मतलब हो सकता है ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही खुलेगा, लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट डे क्या होगा वो बताना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और आजकल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी है, क्योंकि देखो हमारा जो इंडियन रुपी है ना ये वीक होता जा रहा है, तो इंडियन रुपी जब तक वीक होगा तो मतलब मार्केट में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है ना वो एकदम से नेगेटिव हो जाता है। इन्वेस्टर्स यानी कि इन्वेस्ट करने में क्या होते हैं, वो थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई हमारा रुपी वीक होता जा रहा, तो मतलब वो एक नेगेटिव चीज़ है मार्केट के लिए, नेगेटिव कंसेप्ट है, वो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो उससे इन्वेस्टर लोग जो है वो अपना जितनी भी पोजीशन है वो उसको निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक प्रॉपर वे में अगर काम करना है तो ये लेवल एक इस्टेब्लिश लेवल बन चुका है, और सुपर ट्रेंड का भी यहाँ पे क्या यानी कि इसका भी ये बोल रहा है कि ये स्टॉप लॉस लेवल है, तो हम इस लेवल के ऊपर 611 बता रहा, हम 610 रख लेंगे, इसको 610 लेवल हम रख लेंगे एज अ स्टॉप लॉस, और हम इसको एंट्री करने की कोशिश करेंगे कि जितना भी हमें क्लोज मिल जाए, ये हमें एंट्री मैक्सिमम कहाँ तक करेंगे, हमारी मैक्सिमम एंट्री होगी 620 तक, उसके नीचे जाएगा तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि वो कोई रिवर्सल का कैंडल बन रहा होगा, तब हम एंट्री करेंगे, ऐसे एंट्री नहीं करेंगे। कैंडल को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा कैंडल रिवर्सल का है, ठीक है। ओके सर, तो वो मैं आपको जब हम आगे करेंगे तो मैं आपको एक दिन वैसे बताऊंगा कि हमें कौन से रिवर्सल कैंडल्स हैं, वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन बीच बीच में सेशन में कभी कभी समझा भी दूंगी कि कौन सा कैंडल रिवर्सल का है। देखो जैसे ये ना, ये एक बड़ा रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटा कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो ये रिवर्सल कैंडल हो सकता है, ठीक है। इसको बेबी कैंडल बोलते हैं, यानी कि बड़ी कैंडल मदर है और ये छोटा बेबी कैंडल है, तो बेबी कैंडल एक रिवर्सल कैंडल होता है, ठीक है। ये रिवर्सल कैंडल है, मदर मतलब कि ये मदर है और ये उसकी बेबी है, ठीक है। तो बेबी कैंडल, और देखो ये ग्रीन कलर की है, तो ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल आ रही है, तो ये बेबी कैंडल है, ये रिवर्सल का इंडिकेशन है, और स्टॉक देखो यहाँ से फिर गिरा नहीं है और आगे स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद, ठीक है, ओके। और स्टॉक ऑलरेडी ये देखो स्टेप्स में चल रहा है, एक लेवल बनाया इसने, एक स्टेप लिया इसने, फिर दूसरा स्टेप लिया, ये स्टेप्स में ऊपर जा रहा है, यानी कि उसको हम कहेंगे हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है। हायर हाई एंड हायर लो का कंसेप्ट है कि स्टॉक जब हायर हाई बनाते जा रहा है और हायर लो बनाते जा रहा है, वो क्लियरली एक अप ट्रेंड है स्टॉक। और देखो ये अब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, आप सुपर ट्रेंड के स्टेप्स देख लीजिए, ये एक स्टेप बनाया, फिर अगला स्टेप ले लिया, अगला बड़ा स्टेप ले लिया इसने, अब छोटा सा स्टेप और लिया और स्टेप ले लिया, ठीक है, स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये स्टेप वाइज ऊपर चल रहा है स्टॉक, और आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है, और ये सुपर ट्रेंड भी बता रहा है, यानी कि ये स्टेप्स लेते जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, यानी कि ये बता रहा है कि अब ये लेवल एस्टैब्लिश हो गया। अब ये नॉर्मली ये लेवल मतलब स्टॉक में हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो आ नहीं सकता, वहाँ पे आ भी सकता, बट अदरवाइज देयर इज़ अ चांस, हाई स्कोप है कि वो उसने एक लेवल बना लिया है, उस लेवल को वो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास फिर भी एक मतलब स्टेप वाइज जैसे इसकी चाल है ना, जिसके चलने का तरीका है स्टॉक की जो मूवमेंट ऐसी है कि वो बता रहा है कि वो स्टेप्स में ऊपर ऊपर जा रहा है, तो एक स्टेप लेके कोई ऐसा थोड़ा ना कि वो फिर एक स्टेप लेकर तो वो कोशिश करेगा अगला स्टेप लेने की, ठीक है। हाँ, जब स्टॉक किसी एक ऐसे लेवल पे आ गया, मान लो वो हाई से नीचे आना शुरू कर दे, तो फिर वो डाउनवर्ड चलेगा, नीचे को सीढ़ी उतरेगा वो, ठीक है। लेकिन अभी जो इसकी सीढ़ी चढ़ने का तरीका है ऊपर को जा रहा है, तो ऊपर को जा रहा है, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं इस लेवल पे भी, और हम इस लेवल का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 610 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमारा जो है मतलब 26 रुपीज़, अब ये डिपेंड करेगा, क्या पता कल थोड़ा 20 तक अगर आ जाता है, ठीक है, 20 तक अगर आ जाता है हम उसमें एंट्री कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 610, ठीक है, हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो इस लेवल पे ये था, तो यहाँ से थोड़ा नीचे आया, इधर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, फिर हल्का सा नीचे आया, लेकिन इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसके नीचे यानी कि हल्का सा एक पॉइंट यहाँ पे रख के स्टॉप लॉस रख के 580, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 586, तो हम 585 पर रख के इसको कर सकते थे, स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें बने रहते, ठीक है, ऐसे करके। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये 36 पे है, अभी 636 पे है,
अगर ये 620 के पास आ जाता तो हमारे लिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा अगर ये सीधा सीधा कोई ऐसी कैंडल है कि वो गिरता ही जा रहा हो, वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो अगर वो यहाँ से कोई ऐसा इंडिकेशन देता हमको कि हम उसमें 620 तक तो हम एंट्री कर सकते हैं इजीली विद स्टॉप लॉस 610, तो 10 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी कैंडल बनती जा रही है जैसे मान लो वो लेवल अगर वो ब्रेक करता तो हमें वहाँ से फिर निकलना होगा, राइट। ठीक है सर, ये चीज़ समझ आ गई आपको। तो अभी देखो हमारा जो एक मतलब एक पेनी स्टॉक आया था उसको हमने बाहर कर दिया, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है। होता है क्या, उन स्टॉक्स में मोस्टली क्या होता है, लोअर सर्किट्स भी लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपर सर्किट लगता है लेकिन अगले दिन हो सकता है उसमें लोअर सर्किट। एक बार मैं उसका चार्ट एक बार देखता हूँ सर, एक बार थोड़ा सा चार्ट देख के मैं आइडिया हो जाएगा स्टॉक कैसा है। थोड़ा सा ओवरऑल चार्ट भी हमें देखना चाहिए स्टॉक का। क्या नाम था, MANDHA, आई थिंक मंधना समथिंग कुछ था वो, हाँ मंधना इंडस्ट्रीज। तो एक बार मैं इसका मंथली चार्ट में देखूंगा कि स्टॉक है कैसा। देखो इसमें अपर सर्किट लगते जा रहा है, मतलब कहाँ से स्टॉक नीचे गिरा है ये कुछ पता नहीं है। ओके देखिए ये स्टॉक कहाँ था, अभी देखो एक पेनी स्टॉक है एक्चुअली, यानी कि ये स्टॉक एक यानी कि ये अच्छा स्टॉक नहीं है, क्योंकि देखो किसी टाइम में 300 के आसपास भी था और स्टॉक वहाँ से गिर के इस छोटे लेवल पे आ गया कि वो 7 रुपये के पास अभी भी है कुछ अपर सर्किट लेने के बाद, ठीक है। ये स्टॉक है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी 130 के पास, 133 के पास। स्टॉक एक बार जो है 312 के पास गया और वहीं पर कुछ लॉन्ग टाइम तक उसी रेंज में रहा है, और यहाँ से सीधा सीधा ये स्टॉक जो है इसमें कितनी गिरावट आई है, यहाँ से सीधा सीधा गैप डाउन हुआ है, मे बी इसमें स्प्लिट भी हुआ होगा। इतना कैसे टूट गया भाई, हाँ ये स्प्लिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई वो भी नहीं था, इन्होंने स्प्लिट हुआ होगा ये स्टॉक, क्योंकि इतना तो गिर नहीं सकता कभी भी स्टॉक। ये 300 का स्टॉक जो है सीधा सीधा 100 पे आ गया, उसके बाद इसकी जर्नी 100 से कितनी डाउन हो चुकी है कि अब ये स्टॉक जो है 7 रुपये का, आई थिंक उससे भी छोटा लेवल गया होगा ये। तो सीधा सीधा ये स्टॉक जो है एक मतलब ऐसे स्टॉक से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई पेनी स्टॉक है कोई, क्योंकि इसका मार्केट कैप ही कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मार्केट कैप टोटल जो है कितना है, 24 करोड़ का है। तो 24 करोड़ कुछ भी मार्केट कैप नहीं मतलब। तो ऐसे स्टॉक से हमें बचना है, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में कभी भी नहीं फंसना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं और बाद में वो रोते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें नहीं फंसना कभी। अब हम इसको डेली चार्ट में देख के देते हैं। डेली चार्ट में हम देखते हैं कि क्या स्टॉक में, एक बार जब भी कोई स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसका पूरा पहले मंथली चार्ट देखना है, पूरा चार्ट देखना है कि वो स्टॉक में क्या हुआ है, पास्ट में कहाँ था, कहाँ से कहाँ जा रहा है ये। तो इसका पास्ट लेवल देख के तो ये हमें सीधा सीधा लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल मतलब कि क्या बहुत ख़राब स्टॉक है ये। ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। चाहे अभी कुछ टाइम के लिए इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन ये कभी भी हो सकता है स्टॉक जो है हमें क्या हो सकता है, मतलब इसमें हमारा लॉस हो सकता है। सेफ स्टॉक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी कुछ नहीं है, बिल्कुल नई कंपनी, मतलब कंपनी पुरानी है लेकिन इसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसका जो गिरावट आई है ना उसका उसमें स्प्लिट हुआ है, क्या हुआ है वो देखना चाह रहा हूँ। ये देखो लोअर सर्किट की चेन लगी ना, लोअर सर्किट्स की, यहाँ पर भी लोअर सर्किट्स की चेन है। तो इसमें सीधे 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 लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं स्टॉक में, 300 के आसपास से सीधा लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं स्टॉक की, कि ये स्टॉक इतना पिट चुका है। तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी, तो ये हमें फंडामेंटली देखना पड़ेगा स्टॉक में कि उसका मार्केट कैप क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। फंडामेंटली भी मैं एक सेशन लूँगा, 1-2 सेशन फंडामेंटल पे भी लूँगा कि फंडामेंटल में हमें क्या चीज़ें देखनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों हम ये वीडियो यहीं पे आज यही क्लास हम यहीं पे क्या कहते हैं सेशन ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा लेसन काफ़ी बड़ा हो चुका है।
और ये वीडियो बहुत, एक्चुअली मेन चीज़ है कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा वीडियो जो है अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है और उसको डेटा भी काफ़ी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं ये सेशन यहीं पे क्लोज करता हूँ। कल हम चाहे इसको फिर से इसको फिर से करेंगे, चाहे एक क्लास और ले लेंगे RSI के ऊपर हम सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं।